Okay, so we are live on YouTube as well. So hello and welcome all the participants to today's webinar on MS Excel, and we have Excel Guru CA Vijay Agarwal ji with us. So we'll be waiting for another couple of minutes before starting with the webinar. Thank you for your patience. I request all the participants present on the live streaming at YouTube or on the panel to kindly switch to turn off their videos. They can also post their queries during the webinar. Vijay ji will try to take all these queries at the end of the session. Thank you. Okay, so I think it's 12. Vijay ji, can you hear me? Yeah. Rajiv sir? Rajiv sir? Anji, go ahead. Yeah. So good afternoon. Welcome all the participants to today's webinar on transforming your MS Excel skill. Today we'll be digging in a bit into VLOOKUP, and we'll see how we can customize toolbars and create various shortcuts. This webinar is streaming live on YouTube on our channel, Webtel Electrosoft. I've posted the link in the chat box. In case you have any issues connecting with the voice, you can connect to live streaming of our webinar at YouTube as well. So Webtel, as you already know, is a leading e-compliance company. We are a 2-decade-old company. We deal in e-compliance product and various corporate products. Before starting today's session, I would like to announce one of our new product, which is for work from home in today's scenario. For this, I would like to show you a small video. Akash, voice is not coming. Can you restart? It is coming. Yeah. So this solution basically we have launched for how you can access all your software. We have seen all the professionals are going through various problems during the lockdown as they are not able to access all their softwares. Akash. So here is a small video depicting on how Webtel solution can help. So lockdown was imposed in 3 phases already. I think 4 lockdown phases have already been imposed, and अभी भी 5th phase जिसको बोला जा रहे हैं unlock 1 बोला हुआ है. So more than 2 months it's been कि हम lockdown phase कर चुके हैं already. And what are the problems that we are facing as a professional these times? These are the problems that we are facing. We cannot access our software, we cannot download things, we cannot take advantage of our
staff, but the lockdown can be longer, but business is permanent. So we have Reptel Va for a one-stop solution for all your needs, and the solution. So all those who want to know more about this software can scan this QR code. And I think we can start the webinar in another 30 seconds when you scan this QR code. If you want to know about this software is going to make your life easier during this uncertain times. A lot of cities like Delhi, Mumbai, even not just Mumbai, but the entire Maharashtra, the lockdown is still enforced there because a lot of number of cases. So kindly scan this QR code for knowing more about this solution. So I would like to introduce today's speaker to our platform. It's been the third time that Vijayji is a part of Webtel Vigyan webinar, sharing our knowledge. And due to overwhelming response and, according to the needs of the participants, we have Vijay sir again with us. I'll give a short introduction of Vijayji. Vijayji is a chartered accountant and company secretary with around 25 years of experience. He's providing MS Excel solutions and trainings to corporates, institutes, and automating process by using Excel and BI tools. Uh, and most importantly, Microsoft has awarded MVP award, Most Valuable Professional Award for 4 consecutive years from 2014 to 2018 to Vijayji. And I would like to share you that there are less than 100 MVPs in this world. Also, most importantly, sir is a founder of a website and YouTube channel with the brand name of Champ Excel. So if you want to enhance your Excel skills, you can, subscribe sir's YouTube channel, or he has various courses running as well. So welcome Vijayji to today's webinar and to Webtel Vigyan webinar once again. Thank you, Shubham. Thanks a lot. Also, we have C. Rajiv Khandelwalji with us, who is Director of Webtel Electro Private Limited. Welcome, Rajiv sir, and over to you, sir. Thank you, Shubham and Akash. Welcome, Vijay Agarwalji. And I think without wasting much of time, we should start the webinar. We already have 200 participants. Vijayji, over to you, sir. Welcome. Thank you, Rajivji. Good afternoon. Thank you, Shubham, for once again giving me this opportunity to interact with a lot of people, not only from this Zoom, but also from this your YouTube channel. And it's always my pleasure to be part of Webtel and to share my little knowledge about Excel. So friends, as all of you are aware that Excel is a very wonderful tool. It's a tool very user-friendly all over the world. Like we can say the most usable tool. So if something like people are using apart from this Google or Gmail or whatever this YouTube. So if like something tool, if we talk about, so I believe that Excel is one of the tools. Each and every country, whatever the language, whatever the business, small business, or the like big MNCs, everyone is dependent on Excel.
So like the more you learn Excel, I always say the more you feel that okay, you are short of knowledge. So that's the exact definition we can say about Excel. So all of you, I have interacted a lot of times, and most of you are aware about my YouTube channel, my website. So like not giving much introduction, and introduction already given by Shubham. So let's start our session and the today's topic. So that's very interesting. So this VLOOKUP is one of my favorite topic. So I always wish that okay, I should speak maybe 2 hours, 4 hours, 8 hours, maybe 2 days only on VLOOKUP. So on VLOOKUP, like I'm also having one master class at my this YouTube, my website also. So there we are talking only and only on VLOOKUP for 3 hours. So that's also available. So maybe you can go there and you can see. So let's start. Let me share my screen. Vijay sir, I think we can initially talk about the customization of toolbar. I think then sure. we can go into more complex topic, that is VLOOKUP. Yeah. So that's the only way. Like I have planned in my here also my right sir PPT also the same way. Right, like sir. we are going first customization of toolbars and then VLOOKUP. Right sir. Sir, the PPT is visible, sir. Yeah. So in the meantime, like you are going to play the role of moderator. So in between, if yes sir, I'm going to ask some questions, so please like give me that okay, all of you are available and I'm visible. My website, this screen sharing, that's going well. So it's not that okay. Sure sir. Sure it's sir. going only one way. No, so sir, no, friends, regarding this, I always say this Excel, that's a amazing Excel. So I always feel that whenever I'm doing some work, any project work, whenever I'm giving training, whenever I'm interacting with the people, every day I'm learning something new. Every day I feel that, oh, that was I was not aware. So that's the like beauty of this product. So friends, today, like we are going to have this customization of toolbars and this detailed VLOOKUP. So VLOOKUP, I already said, like any number of hours I can speak only and only on VLOOKUP. People say that, okay, we know the VLOOKUP. I say that maybe the people who know VLOOKUP, who feel that they are expert of VLOOKUP, who feel that we are using VLOOKUP for last 10 years, maybe I can have a workshop for them for full 8 hours, and even they are not going to feel bored. Even they are not going to feel that, okay, this we already knew. So that's the like things in VLOOKUP, we can explore a lot of things. So the second topic is customization of toolbars. So before that, already like most of you, you know because of why we need Excel. So because you know the what are the advantages of having this Excel knowledge. That's why we all are here. We are like sitting and we are having such interaction. Because of nowadays, lot of the data and the dynamic reportings, everybody like be it management, be it our stakeholders, vendors, everybody thinks that the report should be very quick. It's the result should be very accurate. So that's why Excel can provide all such things. A little smartness and your hours work is converted into minutes and into seconds. So that's the thing like we should use this Excel. And my second quotation, I already said that Excel is like an aeroplane. But most of us, we are using Excel like a bicycle. And even you are using a bicycle, I always say I'm more than happy. But most of us, even not using a bicycle, so they are carrying this bicycle on their shoulder. So that's the like pain I feel that okay यार लोग जो है ना यूज ही नहीं कर रहे, इतना बढ़िया टूल, इतनी बढ़िया चीज, और उससे हम जो है ना घंटों दिन बचा सकते हैं, और उसको हम जो है ना ऐसे कंधे पे उठा करके उसको बोझ के मारे उल्टा हमारे को काम को बढ़ा रहे हैं. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. दैट्स ऑलवेज आई वांट कि जब भी मेरी भैया आप ट्रेनिंग लो तो आप प्लीज उसके अंदर जाओ और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें मैं जो आपको बताता हूँ उसके ऊपर आप लोग जो है ध्यान दीजिए. अब ये है जी कस्टमाइजेशन ऑफ टूल बार्स. कि क्यों मेरे को ये कस्टमाइजेशन ऑफ टूल बार्स करना है, क्या उसका बेनिफिट है, क्यों किस लिए हम जो है ना इससे क्या मेरे को फायदा होगा. तो ये देखिए जी, हम कस्टमाइजेशन ऑफ टूल बार जो है ये देखिए, शॉर्टकट कीज मेक्स आवर वर्क फास्टर. देखिए मेरे पास शुभम बार बार ये एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, वो
वेटिंग रूम का। तो कैन आई क्लोज दिस मैसेज? बीच में स्क्रीन पे आ रहा है। नहीं, वैसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर करिए। कोई आता है तो ऑब्वियसली उसमें आता है। बीच में आ रहा है, जैसे स्क्रीन पे बार बार जो है ना बीच थोड़ा में। सा आप उसको साइड में कर दो, ड्रैग करके। नहीं, वो साइड में सर वो एरो आ रहा होगा, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे ना, ग्रीन के साइड में एक एरो आ रहा होगा, तो फिर ऊपर चले आएगा, फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए जी, तो ये कस्टमाइजेशन ऑफ टूल बार की हम जो बात कर रहे हैं, तो शॉर्टकट कीज आप लोगों ने सुना होगा, किसी से ही बात करते हैं, अरे यार इसकी शॉर्टकट की क्या है, अरे यार तुम्हारे को तो बड़ी अच्छी शॉर्टकट की आती है, अरे यार तुम काम इतना फास्ट कर देते हो, यार ये हमारे को तो पता ही नहीं है। तो वो क्या है, आपने देखा होगा कई बार इतनी जल्दी जल्दी लोग लाइक कंप्यूटर्स को इतनी जल्दी जल्दी वो हाथ चलाते हैं, देख करके दिमाग जो है एकदम सुन्न हो जाता है, अरे यार ये बंदे की स्पीड है या क्या है जैसे। तो वो जो चीज होती है क्या है, वो प्रैक्टिस तो है ही है, बट उन्होंने अपनी एक शॉर्टकट कीज याद कर रखी है। और इतनी शॉर्टकट कीज है, वो एक्सेल की बात नहीं कर रहे, चाहे वो वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, और भी कोई ईआरपी हो, हर जगह शॉर्टकट की काम आती है। जैसे ही हमने माउस को यूज किया, माउस को यूज करते ही कहीं ना कहीं हमारा काम जो है स्लो हो जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई डिपेंडेंसी। लेकिन जैसे हम 10 की 10 उंगलियों से काम कर रहे हैं और फास्ट काम कर रहे हैं, हमारा काम काफी जल्दी हो जाता है। तो ये जो शॉर्टकट कीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शॉर्टकट कीज की, जिसको आपने हर आदमी ने सुन रखा होगा, डेली यूज करते हैं क्या, फाइल को सेव करना है जी कंट्रोल एस, बोल्ड करना है जी कंट्रोल बी, इटैलिक करना है कंट्रोल आई, प्रिंट करना है जी कंट्रोल पी। ये जो कॉमन, जैसे कोई गलती हो गई कंट्रोल जेड, कोई गलती को ठीक मतलब वापस उसको आना है कंट्रोल वाई। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ये सब शॉर्टकट कीज कहलाती है जी। अब ये शॉर्टकट की जिसकी मैंने नाम लिया है, ये हमारे को जैसे बोलते हैं बचपन से, मतलब जिस दिन हमने कंप्यूटर यूज करना शुरू किया, डे वन से हमारे को ये बता दी गई है, और वो हमारे एकदम जहन में ऐसी बस गई कि हम उसको बिना रह ही नहीं सकते, और वो बिल्कुल याद है, उसको हम मानते ही नहीं कि ये शॉर्टकट किया, उसको एक पार्ट एंड पार्सल मानते हैं कि ये कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो ये तो पता ही होगा। तो ये जो शॉर्टकट की जैसे आपकी हो गई, जितना टाइम बचाते हैं, ऐसी आप किसी भी चीज की और भी बहुत सारी शॉर्टकट की है जिसका हम यूज नहीं करते। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप उसको ढूंढना है। अब पता ही नहीं होगी अगर शॉर्टकट की, तो कैसे आप उसको काम करोगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे जो है शॉर्टकट की ढूंढनी है एक्सेल के अंदर। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो शॉर्टकट की है ही नहीं जी उसकी। अब कोई कमांड है हमारे को बार बार यूज करनी है, लेकिन उसकी शॉर्टकट की नहीं है, तो अब क्या करें जी। अब किसके पास ढूंढे, इंटरनेट पे जाएंगे तो भी नहीं मिल रही, माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएंगे तो भी नहीं मिल रही। अब लेकिन काम हमारा ऐसा है, उस की के बिना हमारा काम नहीं चलता। लेकिन अगर मैनुअल करेंगे, अगर हम इसके माउस के थ्रू करेंगे, तो ऑब्वियसली मेरा वर्क हैम्पर होगा, मेरे को टाइम लगेगा। तो आज मैं दूसरा आपको जो बताऊंगा, जैसे कि कैसे जो है आपको शॉर्टकट की जिसकी नहीं अवेलेबल है, उसकी भी हम कैसे शॉर्टकट की बना सकते हैं। तो पहली चीज तो शॉर्टकट की मैंने आपको बताया, मेक्स अवर वर्क फास्टर। दूसरी चीज, नोट शॉर्टकट की फॉर ईच एंड एवरी कमांड। तो ये आप सब लोग एग्री करोगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद व्हाट्स द वे आउट, कि वे आउट हमारा क्या है। तो उसका जो वे आउट है वो है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसको बोलते हैं QAT। लाइक इसकी शॉर्टकट की होती है, बोलते हैं इसको जैसे ये QAT। तो QAT कहाँ पे होती है, कैसे एक्सेल के अंदर हम उसको यूज करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। एक बार अगर आपको ये चीज पता लग गई, तो यू आर गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ योर शॉर्टकट कीज। और बड़ा ही इजी है ये, इसको हैंडल करना, इसको यूज करना, इसके साथ प्ले करना, बहुत इजीली आप इसको प्ले कर पाएंगे फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए जी, बढ़ते हैं हम अपने इस आगे क्रम के अंदर। तो अब मैं अपनी एक्सेल की स्क्रीन में आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर बाद में एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसके बाद इसको भी, ये एक्सेल को भी हम जो है यूज करेंगे जी। तो देखते हैं जी, ये देखिए जी, ये मेरी एक एक्सरसाइज फाइल है। ये आपको एक्सेल की स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, मैं एक नई आपको सीट खोल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। शुभम भाई, हाँ जी, नजर आ रही है बिल्कुल मेरी सर, ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल अगर सर। कहीं पे भी कोई हो तो प्लीज मेरे को फोन कर लीजिए, या कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल चीजें हैं, मेरे एंड से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके एंड से भी हो सकती है, बट डेफिनेटली विद इन 1 मिनट, विद इन हाफ ए मिनट विल कम आउट, दोबारा हम विल, जो कनेक्ट हो जाए। राइट सर, राइट सर, राइट। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जब आप भाई स्क्रीन आपने खोली, जैसे
अब इसके अंदर आप सबको पता है कि भाई बोल्ड करना है, हमारे को इटैलिक करना है, वो आपको बार बार पता है। अब उसकी तो आपने चीजें याद कर रखी है। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ यार, एक्सेल के अंदर आप जो लोग जो है उसके अंदर क्या है, कमांड मत सीख के जाओ। आप जो है ना फिश मत लेके जाओ। फिश लेने का मतलब मेरा कहने का है कि आपने अगर फिश ली, आपने कोई ब्रेड ली, आपका पेट एक ही दिन भरेगा। उसकी जगह मैं लोगों से बोलता हूँ कि यार आप फिशिंग करना सीखो, फिशिंग करना। क्योंकि फिशिंग करना अगर सीख ली तो आप ना तो अपना ही पेट भरोगे, बल्कि अपने जो साथी हैं, अपने जो नए आपके कलीग्स आएंगे, उनको भी आप फीड कर पाओगे। तो वो फिशिंग जो है उसकी आपकी हमेशा जो है ना माइंड के अंदर एक सेटिंग होनी चाहिए, यार मेरे को फिशिंग सीखनी है ना, मेरे को फिश की बात ही नहीं करनी जैसे। तो वो कैसे सीखनी है? अब ये जो चीजें आपने सीख रखी है, कंट्रोल बी है, कंट्रोल पी है, तो जिस दिन आपने कंप्यूटर को ज्वाइन किया, आपके बगल वाले आपके दोस्त ने बोला अच्छा यार बोल्ड करने के लिए बटन दबा दो, अच्छा सेव करने के लिए बटन दबा दो, और उस दिन से आपको चीज याद हो गई। अब उसके बाद हमने अपना ओरिजिन जो था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल संकुचित कर दिया। अब उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ना ही नहीं चाह रहे, देखना ही नहीं चाह रहे। तो उसको अब ये देखो कि एक्सेल के अंदर यहाँ पे देखिए आप, एक मैं क्वेश्चन जैसे लोगों से मैं पूछता हूँ, यार ये इतनी सारी कमांड यहाँ पे नजर आ रही है, देखिए आपको। विजय जी, जी विजय जी, जी थोड़ा सा आज जनरली हम लोग हिंदी में नॉर्मली करते हैं मेजर क्वेश्चन। थोड़े से कई बार साउथ के या दूसरी जगह के लोग हैं जिनको हिंदी इतनी समझ नहीं आती, थोड़ा सा आज इंग्लिश का करते हैं इसको, ठीक है? चलिए आप जैसे आप कहोगे, मेरे को आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सो इफ यू वांट लाइक फुल सेशन शुड बी इन इंग्लिश देन आल्सो फाइन, और थोड़ा इफ सा यू मिक्स करके करते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश पे ज्यादा कर लेते हैं। नॉर्मली हम हिंदी का ही करते हैं, तो टुडे फॉर द ऑडियंस वी कैन डू इट इन इंग्लिश आल्सो, राइट? राइट, आई एम परफेक्टली फाइन भाई शुभम, राइट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, so friends, what I was talking that like I always say that okay, this is like code ribbon, and most of you are aware this ribbon which like I am showing you. Like, so in this ribbon, if you see, there are different tabs are there. Like I am having this home tab, I am having this insert tab, page layout, data, and each tab is having different commands. Like if you know the data command is there, and this filter is there, this sorting is there, text to column is there. So my always question is there to the participants, to my friends who are using Excel. Like friends, you people are having so much like commands here. You are having this ribbon here, but are you using this ribbon in overall? Are you using all the commands? So then the answer is no, no sir. Like we are using only few commands. Which commands? कि हम बोल्ड करना आता है जी, हमारे को like we know this कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, we know the filtering, we know the pivot table. What about the others? Then there is no answer. Then I ask that okay, then Microsoft has given so many commands, so for whom like they have created these commands? Then also no answer. So then again, if I dig out again, if I'm like asking again and again, so maybe some of the friends like give me very unique, very smart answer. Sir, I feel that these commands which we are not using, those are like Microsoft has made for NASA. Those commands maybe Microsoft has made for ISRO, maybe for the PhD students. So it's not like that. Each and every command whichever Microsoft has made, that is for our general use, average user. So now how to know about those commands? Because each and every time we don't have time. It's not that okay, we can have a plenty of time on internet to searching here and there. So how to learn while doing work? So in that case, I say that okay, you have to give just a half second, only half second. So if you give half second every day, you are going to learn something new. How? So like you know that okay, bold command is there. Like I wrote my name Vijay, and if I want to do the bold, control B, so automatically it's going to do the bold. Now how to find this bold command? So because this everybody knows, but if you go to this bold command, you see this B button is there, and if instead of clicking, if you are going to put your cursor here, like so, you see when you hold your cursor, it's giving something like this text. It's telling you that okay, some what is this? So it's telling that this is bold, and in bracket it is showing control B. Means ये जो कमांड है वो बोल्ड करने के लिए है, और उसकी जो शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल बी, एंड ऑल्सो इट इज रिटन मेक योर टेक्स्ट बोल्ड. So now you know that okay, holding of this cursor and gives me this narration. So now this is
like if you take only that, okay, control B, that is your fish. But if you know that, okay, if I am going to hold the cursor and if I am going to read the text, that is fishing. So that's the difference between fish and fishing. So now, whenever you have time, every day, each morning, when you sit in on your desktop, every day you try to find out one new command. You write down on your paper, on your notebook, and try to use that particular command on that day at least 10 times. So once you are using 10 times, that key is going, you are going to be master of that shortcut key. And if like that, you are using every day one command, not like I say 5 or 10. So maybe in 20 days, in a month, if you are 20 working days are there, so you are going to be master of 20 shortcut keys. And then it will make difference in your day-to-day working. Then people will also feel that, okay, you are the ninja of Excel, you are the master of Excel. अरे यार हमारे को भी बता दो, तो कितना अच्छा लगेगा वो चीज आपको सुन करके. तो अभी आप देखिए, इसके अंदर हम इटैलिक पे गए तो यहाँ पे भी कमांड आ रही है, अंडरलाइन पे गए तो यहाँ पे भी कमांड आ रही है, राइट. अब इसके अंदर कहीं पे भी आप जाओगे, कई जगह पे ये कमांड नहीं भी आती है यहाँ पर. अब इसके अंदर हम गए डेटा के अंदर, और डेटा में हम गए तो फिल्टर के अंदर गए, तो ये देखिए फिल्टर के अंदर ये कमांड पे जैसे हम गए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, राइट. अब ये जो कमांड है ये एक्सेल की इनबिल्ड कमांड है, इनबिल्ड, राइट. तो इसको हमने कंट्रोल शिफ्ट एल दे रखा है, टर्न ऑन फिल्टरिंग फॉर द सिलेक्टेड सेल्स. और अच्छा एक फ्रेंड्स और भी बात आप याद, हम एक्सेल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये वर्ड पे काम नहीं करेगी, ये पावर पॉइंट पे काम नहीं करेगी, एवरीथिंग लाइक इट आउटलुक पे भी काम करेगी, एवरीवेयर इट इज गोइंग टू वर्क. सो ये आपकी स्मार्टनेस है. ऐसा नहीं अरे यार हमारे को बंदे ने, उसने जैसे होता है कि 2 और 2 4 बताए, लेकिन उसने 2 और लाइक 3 और 1 4 बताए, तो 3 और 1 4 होते हैं, 1 और 3 वो 4 हमारे को नहीं पता जी, उसके लिए फिर हमारे को दूसरी क्लास करनी होगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. ये जो चीज है आपको हर जगह पे उसको यूज करना है. अब आपको ये पता लग गया कि यार ये कमांड है, ये फिल्टर है, ये सब चीजें है, और इससे मेरी लाइफ जो है बड़ी इजी हो जाएगी. ठीक है जी. अब कई बार बात आती है, अब जैसे देखिए, अब मैंने यहाँ पे विजय नाम लिखा और विजय को नाम लिख करके मैंने ये देखिए मैंने खींच दिया. ये आपको ध्यान होगा पिछली बार अगर मैंने एक लिस्ट बनाई थी, तो जैसे मैंने विजय को पकड़ा और इसको पकड़ करके खींचा, तो ये कस्टम लिस्ट बनी हुई है मेरी. जैसे आप जनवरी फरवरी को खींचते हो, ऐसे मैंने इसके अंदर नाम की लिस्ट बना रखी है. ये मेरी लिस्ट ऐसे खिंच गई. अब इस टाइप की चीजें अगर आपको सीखनी है तो पता लगा जी, आपको अलग अलग जो ट्रेनिंग है वो मेरे YouTube चैनल पे आप थोड़ी एक्सप्लोर करोगे तो वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको मिलेगी. मेरे YouTube चैनल उस पे मेरी वेबसाइट पे जाओगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेगी. तो ये आपको पता लग गया. अब आप कह रहे हो जी इसको बोल्ड करना है. अब हमारे राजीव जी हैं जी, अब बॉस आदमी है जी, बॉस की बात तो आप भी मानोगे. अब आपने क्या किया इसको, अच्छा यार जहाँ पे भी ये कैटरीना आ रखी है उसको उन्होंने ये जो है ना विजय को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया जी, ये शाहरुख को जो है ना उन्होंने बोला ये अंडरलाइन कर दिया जी, अतुल को उन्होंने ये अंडरलाइन कर दिया. अब उन्होंने बोला जहाँ पे ये कैटरीना आई हुई है इसको तो यार डबल अंडरलाइन करो, ये तो अलग से नजर आनी चाहिए यार, अलग से मेरे को जो है ना पता लगना चाहिए कि अरे यार ये भाई कैटरीना है बीच के अंदर इनमें, अब इसको डबल अंडरलाइन करनी है. अब आप चक्कर में पड़ गए, अरे यार सिंगल अंडरलाइन तो हमने सुन रखी है, लेकिन डबल अंडरलाइन ये तो अरे बॉर्डर सर, बॉर्डर, अरे नहीं नहीं बॉर्डर नहीं, वो मेरे को अंडरलाइन चाहिए, जैसे नाम के अक्षर के नीचे मेरे को आई नीड डबल अंडरलाइन. अब आप कहोगे सर ये तो नहीं होती. अरे क्यों नहीं होती? आई हैव सीन लाइक आई गोट वन फाइल एंड देयर वाज द अंडरलाइन. मेरे को ध्यान है कैटरीना के नीचे जो है और उसके अंदर जो है शिल्पा शेट्टी के नीचे उसमें अंडरलाइन बनी हुई थी. अब भाई बॉस अगर मांग रहे हैं तो अब तो पड़ गए चक्कर में. अब आप ढूंढ रहे हो, अब कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा. तो एक तो चीज ये है कि हमने उसको ढूंढना है, कैसे ढूंढना है. तो ये जितनी भी आपके ये जो है बटन्स मैंने बताया ना, एवरीवेयर यू आर गोइंग टू हैव सम ड्रॉप डाउन्स. सो दीज ड्रॉप डाउन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स वी फील ड्रॉप डाउन्स मींस गड्ढा, यार ये तो अननेसेसरी है, ये तो पिट बॉक्स ऐसे ही है और हम जाकर के टाइम इज गोइंग टू वेस्ट. नो, ये जो है ट्रेजर है. जैसे हम कोई समुद्र में से मोती निकालते हैं, like we are by digging out our earth, so we are by finding this gold mines. तो like that, अब अगर आपने में से देखिए कितने लोग हैं जिन्होंने पता हो ये अंडरलाइन के बगल में कि ये देखिए ड्रॉप डाउन है, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक दिस ड्रॉप डाउन, वाओ ये तो बड़ा अमेजिंग है यार, डबल अंडरलाइन, ये तो हमने देखा ही नहीं. 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, अरे यार ये तो गजब की चीज है. अब आपने क्या किया, ढूंढ लिया जी डबल अंडरलाइन. अब इसके ऊपर आप गए कैटरीना पे और जा करके डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया. ये देखिए ये कैटरीना जो है हमारी डबल अंडरलाइन हो गई.
उसका कलर भी भाई अलग हो गया और डबल अंडरलाइन भी हो गई, तो बॉस खुश हो गए, राइट। अब उसके बाद जो है यहाँ पे अगली बार जो है ये डिंपल आ गई जी। अब बॉस की तो भाई ऐसा नहीं कि वो अंडरलाइन से खुश होने वाले हैं, अब वो कहे जी इसको डिंपल को भी करो जी, डबल अंडरलाइन करो। अब वो भाई बॉस की, अब आपने बॉस के साथ काम करना है तो आप ये तो बोलोगे नहीं कि नहीं सर ये नहीं होगा, ये तो अननेसेसरी काम है। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो गई आपकी, आपकी प्रॉब्लम ये हो गई कि अब आप इसके अंदर अगर डबल ये यहाँ पे करते हो अंडरलाइन, तो इसका तो ये शॉर्टकट है जी, यहाँ पे कोई भी नाम है उसका तो शॉर्टकट है, लेकिन इसका शॉर्टकट जब आप देखते हो यहाँ पे, तो देखिए इस पे कर्सर रखा मैंने, तो यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रोल यू दे रखा है, लेकिन जब डबल अंडरलाइन पे आपने कर्सर रखा तो ये तो बता रहा है डबल अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पे शॉर्टकट है ही नहीं। शुभम जी देख रहे हो आप? हाँ जी सर, आई थिंक सर डबल अंडरलाइन most of us doesn't know this, even this double underline appear, sir. I've already gone through your course, but I know this. हाँ, But before that, I was not, aware of this, sir. कि इतना ठीक है जी। सामने होने के तो बाद भी हमें हाँ पता हाँ, होगा, सर। तो अब देखो जी, अब भाई शुभम जी है, अब उनको राजीव जी के साथ काम कर रहे हैं। अब राजीव जी को तो हर एक उसके अंदर जो है ना भाई डिंपल के नीचे भी अंडरलाइन डबल अंडरलाइन चाहिए, ये चाहिए। अब इनका काम बढ़ गया शुभम जी का। अब काम कैसे बढ़ गया कि अब ये यहाँ पे जाएंगे, इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और उसके बाद इस डबल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, तब जाकर के डबल अंडरलाइन होगी। और ऐसा ये एक दिन में एक बार करना हो तब भी समझ में आता है जी, 2 बार करना हो तब भी समझ में आता है। अब उनकी तो हर एक लेटर में, हर एक रिपोर्ट के अंदर, हर एक चीज के अंदर कभी इस पे डबल अंडरलाइन है, कभी इस पे, और कई बार ऐसा बोल देंगे यार सबको डबल अंडरलाइन करना है आपने। अब ये तो आफत का काम हो गया। नाउ लाइक शुभम इज वरीड, लाइक ही इज नॉट एबल टू गिव द एफिशिएंसी। नाउ ही फीलिंग दैट ओके यार देयर शुड बी सम शॉर्टकट कीज। अब वो शॉर्टकट कीज इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं जी, वो शॉर्टकट कीज वो ढूंढ रहे हैं यार, बुक्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो शॉर्टकट की है ही नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने दे ही नहीं रखी। अब माइक्रोसॉफ्ट की भी तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। उसने क्या किया, अंडरलाइन जो चीज 99% लोग यूज कर रहे हैं, जो ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ती है, उसके लिए तो शॉर्टकट की बना दी। लेकिन जो रेयर है, जो राजीव जी जैसे एक्सेप्शनल बंदे हैं, वो उसको अगर यूज करते हैं, भाई उनका चॉइस है जी। अब उनका डबल अंडरलाइन उनको चाहिए, तो उसके लिए तो माइक्रोसॉफ्ट अगर देगा तो उसके पास तो कीज तो लिमिटेड है ना जी। उनके पास तो ऐसा है ना कि स्टॉक हर एक चीज को दे दे, कंट्रोल एस भी यूज हो चुका, पी भी यूज हो चुका, आर भी यूज हो चुका, कितना यूज करेंगे, ओल्ट के साथ भी यूज हो चुका है, शिफ्ट के साथ भी चीजें यूज हो चुकी है। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा यार ऐसी प्रॉब्लम तो रहेगी हर जगह पे, राजीव जी जैसे जो है भाई एक्सेप्शनल बंदे तो होंगे ही होंगे। अब उनके लिए, उनके जो सबॉर्डिनेट्स है, उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए, उनकी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए यार हम एक ऐसी चीज बनाते हैं ताकि लोगों को आना ही नहीं पड़े हमारे पास। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा टूल बनाया एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर एक उसके अंदर, कि भाई उन्होंने डिपेंडेंसी खत्म कर दी। लोगों को बोला आपको इन केस यू वांट सम शॉर्टकट कीज, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप ही बना लीजिए जी। तो ये तो गजब हो गया जी, ये तो बहुत बढ़िया। लाइक अगर ऐसी चीज हो जाए तो फिर तो क्या है भाई, राजीव जी भाई डबल अंडरलाइन बोलेंगे तो हो जाएगा, और कोई काम बोलेंगे वो भी हो जाएगा। अब उसकी शॉर्टकट की हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे डाटा के अंदर हम जाते हैं, अब यहाँ पे फिल्टर की शॉर्टकट की है जी, अब यहाँ पे गए हम एडवांस्ड पे, अब इसकी शॉर्टकट की नहीं है, लेकिन आपको इसकी शॉर्टकट की चाहिए बार बार। अब यहाँ पे आप क्लियर पे गए तो यहाँ पे क्लियर की शॉर्टकट की नहीं है, रीअप्लाई की शॉर्टकट की है। तो इस टाइप के पता नहीं कितने बटन है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि यार इसकी शॉर्टकट की है और उसकी शॉर्टकट की नहीं है। अब जैसे रैप टेक्स्ट है, अब आपका काम ऐसा हो जिसमें वर्डिंग ऐसी हो कि रैप टेक्स्ट आपको बार बार करना है, तो आपकी तो डिपेंडेंसी हो गई ना जी माउस के ऊपर। तो उसको खत्म करने के लिए ये देखिए, इसके ऊपर जो ये ऊपर नजर आ रहा है टैब, इसके ऊपर देखिए मेरा जो ये बटन है, यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन को ये बड़ा करके दिखाता हूँ। ऊपर मेरी कुछ कीज पड़ी हुई है। अब इसके ऊपर जब कर्सर को लेके जाओगे, आप यहाँ पे रोकोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसको QAT बोलते हैं, कि आप अपनी क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हो। अच्छा जी, इसका क्या फायदा होगा? यार सर इसमें तो आपके तो 10 कमांड्स हैं, 9 कमांड्स हैं, हमारे पास तो ऐसी है ही नहीं। हमारे पास तो वो घिसे पिटे 3 कमांड है जी। कौन सी कमांड है? कंट्रोल, ये एक तो कंट्रोल सेव है, कंट्रोल जेड है, कंट्रोल वाई है, बाकी तो चीज है ही नहीं जी हमारे पास। और वो तो हमारे को याद है, वो तो ऐसी फालतू में दे रखी है, जगह घेर रखी है। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है। आप लोग जो है ना अब ध्यान नहीं देते कि ये क्या है क्या नहीं है इसकी। अब यहाँ पे जब आप गए, ये 2007 में कमांड आई थी सर, 2007 में, आज से करीब 13-14 साल पहले।
और तब से हमने इसको एक्सप्लोर नहीं कर रखा। अगर आज आपने इसको एक्सप्लोर कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप भाई ऑफिस में 3 से 4 घंटे काम करते हैं, तो मैं ये पक्का कह सकता हूं 20 से 30 मिनट, 20 to 30 minutes every day you are going to save just after this next 10 minutes training. और उससे ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, हो सकता है आप 1 घंटा ही बचा लो कि उसको और इफेक्टिव यूज कर लो। तो इसमें क्या क्या करना है जी आपको, कि जो चीज की आपको शॉर्टकट की है, अच्छा एक गुरु मंत्र मैंने, आप लोगों ने मेरी 2 पहले भी सेशन किए होंगे, या मेरे को और भी जगह जगह होते रहते हैं, आपने देखा होगा, मेरी मास्टर क्लास भी होती है, उसको भी आपने अटेंड किया होगा। कल भी एक मेरी मास्टर क्लास है डेट के ऊपर, और टेक्स्ट ये डेट के जो फॉर्मूलाज है उस पर 2.5 घंटे की क्लास है मेरी, कल शाम को, बहुत नॉमिनल अमाउंट पे। तो उसके अंदर डेट के फॉर्मूले पे बात होगी, जिसको इंटरेस्ट है तो वो अटेंड कर सकता है। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे जब आप गए और यहाँ पे जाने के बाद इसके अंदर, तो एक मैं उसमें बोलता हूँ कि एक आपका बहुत बढ़िया गुरु मंत्र है कि जब भी कभी फंसो तो आप क्या करो, राइट क्लिक कर दीजिए। देर आर मोर देन 50% चांसेस यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, वो संजीवनी बुट्टी, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, यार एकदम ऐसी वो दवाई मिल जाएगी कि वो यार मजा आ गया। अब इसी में क्या किया आपने, जब ये अंडरलाइन पे, डबल अंडरलाइन पे आप थे, यहाँ पे शॉर्टकट की है नहीं, आपकी लाइफ माइजरेबल हो रखी है, राजीव जी ने आपको बार बार बोल करके और आपको ऐसा ये कर रखा है, रात को आप 10-10 बजे घर पे जा रहे हो, तो यहाँ पे आपने गए और राइट क्लिक किया, ये देखिए क्या आ गया, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, बस इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया, ये देखिए ये कमांड कहाँ पे पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई जी, यहाँ पे आ गई ना जी। ये देखिए इसके अंदर डबल अंडरलाइन, अभी शॉर्टकट की तो है नहीं, वही चीज आ गई। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब एक फायदा तो इसका ये हुआ कि अब आप डेटा के टैब पे हो, आप फॉर्मूलाज के टैब पे हो, आप पेज लेआउट के टैब पे हो, किसी भी टैब के ऊपर हो, ऐसा तो नहीं कि भाग भाग के आप इस कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो, राइट। एक कमरे को बंद करके फिर दूसरे कमरे में जा रहे हो, फिर उस कमरे का सामान लेके यू आर कमिंग बैक टू द लाइक अदर रूम। तो लाइक विच एवर पेज यू आर, these commands are always visible, that's why these are called quick access toolbar. Now come the second question. Now the second question, sir, but still we are using mouse. सर इसका क्या फायदा हुआ, हमने माउस तो यूज नहीं करनी, हमने माउस यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग वेरी लेट, दैट्स व्हाई हमारा काम सफर कर रहा है। तो क्या करें जी इसके लिए, तो इसके लिए बिल्कुल है आंसर है मेरे पास। तो क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, मैं आपको फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यही नाम है इसके अंदर जो ना खींच के ये दिखा रहा हूँ इसके अंदर, राइट। सर तो यहाँ सर आई थिंक एक बारी पहले सबकी नॉलेज चेक करते हैं, एक बारी पूछते हैं अगर किसी को शॉर्टकट यूज करना आता है तो। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल करें, बिल्कुल करिए जी। So anyone in the audience, if they can write key how to access the quick access toolbar by using the keyboard, creating your own shortcuts, किसी को पता हो तो। सर आप बता दीजिएगा, लोगों के आंसर आ रहे हैं, आप बता दीजिए। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवम जी। देखिए ऐसा अगर इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, वेरी गुड। तो ये फ्रेंड्स जो भाई शिवम ने बोला कि इस टाइप की चीज हमने कोशिश करनी चाहिए, इसकी कैसे ये शॉर्टकट की हो। अब यहाँ पे ये जो चीज बनाई है ना, एक चीज आपने नोट की होगी, गलती से कभी आपने देखा होगा आपसे ऑल्ट का बटन दब गया, और जैसे ऑल्ट का बटन दबता है इसके अंदर कुछ ये ऐसे जो है ना कीड़े मकोड़े टाइप से ये आगे ARM, और आप डर जाते हो, अरे यार ये पता नहीं क्या हो गया, जल्दी से एस्केप करते हो और भागने लगते हो, मतलब हम बचना शुरू करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट थोड़ा सा इन केस वी आर गोइंग टू काम होकर के, इफ वी आर गोइंग टू सी, अरे यार ये ऑल्ट बटन दबा है, एंड ये देखिए HNPARM, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप अगर होम टैब पे हो और आपने ऑल्ट बटन दबा दिया एंड यू वांट टू गो द डेटा टैब, तो जैसे ए दबाओगे तो आपका डेटा टैब के सारे बटन आ जाएंगे। अब यहाँ पे जाकर के आपने सपोज करो शॉर्ट का बटन है ये SS, तो आपका बटन क्या हो गया ऑल्ट, और ऑल्ट के बाद ए दबाया आपने, ए के बाद आपने SS दबाया, तो इसका मतलब ये कमांड आपकी बन गई जो आपकी शॉर्ट वाली कमांड पे लेके चली जाएगी, तो ये शॉर्टकट की बन गई। ये पहले लोटस में चलता था ऐसा, ऑल्ट या स्लैश दबाते थे और उसके बाद वो बटन चलते थे, वहीं से ये शॉर्टकट की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे इसके अंदर भी, यहाँ पे जैसे मैंने ऑल्ट का बटन दबाया तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू सी द सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब ये नंबर आ गए तो इसका मतलब ये जो मेरा जो डबल अंडरलाइन है इसका नंबर क्या है, ये है 8।
तो व्हाट इज द बेनिफिट? अब मेरी जो शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताया, जो है ही नहीं, कोई शॉर्टकट की अवेलेबल ही नहीं है, ना माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखी है, ये हमारे लिए कस्टमाइज हो गई, मेरे लिए बन गई। क्या बटन बन गया? Alt 8। किसके कंप्यूटर पे चलेगा? मेरे लैपटॉप पे चलेगा। अब ऐसा मत करना कि कंप्यूटर पे आपने अपना ये वो बनाई है शॉर्टकट की, वो होता है ना अपने फोन के ऊपर, तो अपनी जो है ना पता लगा जी आपने अलग से टोन बना रखी है भाई गर्लफ्रेंड की, और आप दूसरे का फोन आ गया और उसमें उसकी जो है टोन को ढूंढ रहे हो। ऐसा नहीं होगा, वो आपकी अपनी लाइक जो ना योर कस्टमाइजेशन है। तो अब यहाँ पे आप गए और आपने इसको जा करके डबल अंडरलाइन करना है, जिस मर्जी को आपने सिलेक्ट किया और Alt 8 दबा दिया यहाँ पे। तो ये देखिए जैसे ही आपने Alt 8 किया, आपकी शॉर्टकट की जैसे कंट्रोल बी चल रहा था, इन द सेम वे इट इज गोइंग टू वर्क। इन द सेम वे आप अपने इसमें बना सकते हो। और ये मैंने एक शॉर्टकट की बनाई है, ऐसे आप जो है जितनी मर्जी शॉर्टकट की बना लीजिए, जितनी मर्जी बना लीजिए, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। ऐसे बनाते चलोगे, ये ऐसी लाइन चलती चली जाएगी, उसके बाद ये नीचे भी आता चला जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद आप कहोगे यार ये तो जो है ना 8 नंबर है, आई वॉन्ट टू कीप इट इन 3 नंबर, आई वॉन्ट टू कीप इट ऑन 1 नंबर, कि यार ये तो मेरी मस्ट है, इसके बिना तो यार मेरी लाइफ जो है ना बहुत ही ये थी, ये तो काम ही ऐसा है, बार बार उन्होंने पूछना है, तो डबल अंडरलाइन को मेरे को 1 पे रखना है, क्योंकि Alt और 1 मेरा एक ही हाथ से चल जाएगा, और 9 के लिए मेरे को थोड़ा हाथ जो है घुमाना पड़ेगा उधर। तो अब ऐसा आप चाहते हो, लेकिन इसमें क्या है, अनफॉर्चुनेटली जब मैं इसको उठा करके ऐसे लेके जा रहा हूं, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। मतलब ये है कि ये मेरा ड्रैग नहीं कर सकता इसको। लेकिन कोई बात नहीं, ड्रैग नहीं कर सकते, बट स्टिल देयर इज ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? जब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाकर के मैंने राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक करने पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, तो यहाँ पे जाकर के मैं बोल सकता हूँ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, तो मेरे सामने ये विंडो खुल जाएगी जी। ये विंडो मेरे सामने खुली। अब इस विंडो के अंदर यहाँ पे मेरे पास कमांड है, जो पॉपुलर कमांड है। यहाँ पे एक इसी के अंदर ड्रॉप डाउन में कमांड्स नोट इन द रिबन, देन उसके बाद ऑल कमांड्स। ऑल कमांड मींस कमांड ऑफ रिबन एज वेल एज विदाउट रिबन। तो ऑल दोज कमांड्स आर अवेलेबल हियर। यहाँ पे ये अराउंड 1000 कमांड्स आर देयर फ्रेंड्स, अराउंड 1000। अब ये जितनी भी कमांड्स हैं किसी को भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पे आपकी जो कमांड पड़ी हुई थी ये यहाँ पे है। मैंने आज से 2007 आई पुट कमांड पेस्ट वैल्यू ऑन 1 नंबर। नाउ आई कांट लीव विदाउट दिस Alt 1। पेस्ट वैल्यू इज माय मोस्ट फेवरेट कमांड बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। So every time I need कि my data instead of formulas formatting I don't want, so just I copy Alt 1 paste value. So for me even more than Control V, even more than Control B, Control S, I am using Alt 1. So like that you can also use as per आपकी requirement के base पे. Now here this double underline is there at number 8. Now what you can do, you select it. When you are going to select it, you are going to have this ये move up and move down. तो जैसे आपने इसको किया ये move up हो गया। What it means कि now suppose your number is on 3rd, या मैं इसको लेके number 1 पे, now Alt 1 is double underline, Alt 2 is paste values, Alt 3 is paste formulas. So whatever my commands are there, remove duplicates, ये मेरे लिए बड़ा यूज होता है। तो ये अभी Alt 5 हो गया, बट मेरे लिए मैंने Alt 4 बना रखा है, क्योंकि मेरे को इजी लगता है ये कमांड। एक बार आप जो बनाओ ना उसको आप रिमूव मत करो, जो आप डेली यूज कर रहे हो, उससे क्या होगा, इट विल बी इन योर हैबिट। तो आपकी वो कमांड अगर कभी 3 नंबर पे होगी, समटाइम्स इट इज 5 नंबर, समटाइम्स इट इज 1 नंबर, देन इट इज नॉट ए शॉर्टकट की, वो फिर आप भूल जाओगे, याद रखने में दिक्कत होगी। तो वट एवर यू आर मेकिंग, आप उसको डिसाइड करो, प्लान करो, एंड एटलीस्ट 4-5 कीज ऐसी होनी चाहिए जो आपकी परमानेंट हो जाए, और कुछ 4-5 कीज ऐसी हो जो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए मेरे लिए ये फर्स्ट 5 कीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इनको कभी भी अलग नहीं करता जी। अब आपके डबल एंड होप कि आपको ये जो चीज है शुभम जी, ये तो समझ में आ गई कि रिबन वाली जो कमांड है वो हम कर सकते हैं जी। अब हम आते हैं रिबन के अलावा, तो जितनी भी रिबन की कमांड है फ्रेंड्स, एनी कमांड ऑफ रिबन्स यू कैन मेक एज ए शॉर्टकट की। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, हम एक्सेल के लिए मत सोचना है इसको, थोड़ा अपना होरिजन ब्रॉड करना। वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, एनी प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, द सेम कंसेप्ट इज गोइंग टू वर्क। नाउ द सेकंड थिंग कि यार इसमें ऐसी क्या कमांड्स हैं जो रिबन पे नहीं है, तो उसके लिए आप देखिए अब कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जब हम गए पॉपुलर कमांड्स, अब यहीं पर अब जब जाएंगे
तो इसमें कमांड्स नोट इन द रिबन मींस वो रिबन पे है ही नहीं। अरे यार ऐसी क्या कमांड है कि वो रिबन पे नहीं है, और ये कितनी कमांड है, हंड्रेड्स ऑफ कमांड्स आर देयर, जिसको हम यूज कर सकते हैं। कैसी कैसी कमांड है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, एक इसमें ऑल कमांड्स, ऑल कमांड मींस रिबन वाली, विदाउट रिबन, रिबन विदाउट रिबन, ऑल कमांड्स। तो ये सब अल्फाबेटिक आ रही है यहाँ पे, अल्फाबेटिक। अब इसके अंदर अगर आपको ढूंढना है, लाइक मैं आपको बताता हूँ, लाइक यू वांट की कैलकुलेटर चाहिए आपको, तो आपने सी दबाया तो यू आर वेंट टू सी पे। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकली जैसे डिक्शनरी में ढूंढते हो, ऐसे आप गए एंड यू फाउंड आउट हियर कि यार यहाँ पे तो एक कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, राइट, और एंड यू पुट इट ऐड, ये ऐड हो गया जी आपका। ऐड होने के बाद आपने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका ये निशान आ गया जी। नाउ यू क्लिक ऑल्ट, द की नंबर इज 9, ऑल्ट 9 इज फॉर कैलकुलेटर। नाउ आपने सोचा ही नहीं, अरे फ्री का कैलकुलेटर, एवरीबॉडी फ्री के लिए तो हम कहीं से भी जो है ना जान दे देंगे, हम तो ऊपर से कूद जाएंगे जी। और ये देखिए आपके पास अवेलेबल है। तो हेयर नाउ इफ यू वांट कैलकुलेटर, तो जस्ट यू क्लिक हेयर ऑल्ट 9, जैसे आपने 9 किया, कैलकुलेटर इज देयर। So I'm giving just example, and like this there are hundreds of commands are there. Sometimes I come to know some of my students, so he tells me, अरे सर आपने उस दिन ये ट्रेनिंग करवाई थी, I found something new, और उसने तो मेरी लाइफ ही जी कर दी, मेरे को तो प्रमोशन मिल गई, मेरा तो यार मैं पार्ट टाइम करने लग गया, और वो कमांड मेरे को भी नहीं पता थी। तो ये आपने एक्सप्लोर करनी है, ये नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसमें कितना जो है आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो कई बार होता है जी, गुरु जैसे होता है बता रहा है, लेकिन हो सकता है उसके जो स्टूडेंट होते हैं वो आईएएस ऑफिसर बन गए, कहीं पे कुछ हो गए, तो मे बी एनीथिंग यू कैन डू। बहुत हमारे अंदर ये है, पोटेंशियल है, तो आपने उसको पहचानना है। तो ये आपने कैलकुलेटर बनाया, इसी टाइप से इसमें एक बहुत बढ़िया कमांड मेरे को लगती है, उसको आप टुडे ओनली, आज ही आप उसके अंदर कर लो, उससे डेली की 10 मिनट आपकी बचेगी। क्या कमांड है जी वो कमांड, वो देखिए जी, वो शॉर्टकट की है जो आपकी रिबन के ऊपर है, रिबन पे नहीं है लेकिन वो पीछे ही नजर आ रही है। ये देखिए जी, मैं इस पे गया डेटा पे, ये देखिए मेरा यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है जी। अब फिल्टर के अंदर मैं आपको बताता हूँ, मैं इस पे डिटेल में नहीं जाना चाहता कि फिल्टर लगाना है मेरे को। और फिल्टर लगाने के लिए अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं उसके ऊपर, फिल्टर ये नीचे बैठे हुए यहाँ पे, और मेरे को फिल्टर लगाना है ओडी के ऊपर। अब सबसे पहले आई विल गो टू द टॉप, टॉप के ऊपर मैं जाऊंगा, टॉप पे जाकर के आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द डेटा। फिर उसके बाद इस फिल्टर के बटन को दबाऊंगा, फिल्टर के बटन को दबाने के बाद देन उसके बाद आई विल गो टू द कस्टमर, एंड इन कस्टमर आई एम गोइंग टू फाइंड आउट देयर आर सो मेनी कस्टमर कि वेयर इज द ओडी, वेयर इज द माय दिस जीएसटीएन नंबर, अगर कोई लंबी लिस्ट होगी, एंड देन you are going to see here and there, and then you have to unselect it, then you are going to select it, and then you are going to click OK. This is the OD का ये हो गया। फिर then you want to select the some salesperson, some value you want to select, it is going to take hell of time. Instead of that, I said that whenever you are stuck, what you should do, you should do right click. In right click, अभी तक तो आपको एक ही कमांड देखनी है बस, इसमें तो हमने फिल्टर ही देख, इसमें तो हम जो है ना फॉर्मेट सेल्स देखते हैं बस, हम तो इसमें पेस्ट स्पेशल ढूंढते हैं, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स। अपनी आंख एक बार खुली रखो, यहाँ पे फिल्टर की कमांड है, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू। अगर मैंने इस पे क्लिक किया, फिल्टर लग गया जी। इस पे मैं गया हॉटमेल पे, राइट क्लिक, फिल्टर, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू, हो गया जी। और यही कमांड अभी जो राइट क्लिक कर रहे हैं, इसकी भी जरूरत ना पड़े मेरे को। इसके लिए फ्रेंड्स मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, आप ये देखिए, इस पे राइट क्लिक, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ पे जाकर के मैंने इसको बोला पॉपुलर कमांड्स या ऑल कमांड्स, एंड इसके अंदर मैंने जाकर के इसमें कहा कि मेरे को क्या चाहिए। इसके अंदर देखिए मैं गया और मैंने बोल दिया ऑल कमांड्स, और यहाँ पे आप देखोगे ए से ऑटो फिल्टर, एक इसके अंदर आपको कमांड मिलेगी जिसका नाम है ऑटो फिल्टर। ये देखिए इसमें आ गया मैं, और ये देखिए नाम है ऑटो फिल्टर। अब इस ऑटो फिल्टर को आपने पकड़ना है और इस बटन पे क्लिक कर देना है ऐड। ये रिबन से नहीं मिलेगा आपको, ये यहीं से मिलेगा ऑटो फिल्टर। और कोई चीज आपको हटाना है, कैलकुलेटर को हटाना है, हटा दीजिए, डबल अंडरलाइन को हटाना है, यहाँ से हटा दीजिए, अदरवाइज ऊपर से भी हटा सकते हो इसको। ऐसा नहीं कि आपको यहीं से आगे हटाना है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गए और राइट क्लिक किया, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। अब आपका ये हो गया ऑटो फिल्टर। इस ऑटो फिल्टर का क्या फायदा है जी, आपने फिल्टर लगा रखा हो नहीं लगा रखा हो,
अब आप कहीं पर भी बैठे हो, आपकी की याद रखनी है, Alt 8। नाउ यू प्ले विद इट, एंजॉय दिस। आप गए यहाँ पे सोनी पे, Alt 8 सोनी पे लग गया, Alt 8 साउथ पे लग गया, Alt 8 पोर्टमैन पे लग गया। मतलब जिस भी बटन पे आप बैठे हो वहीं पे आपने कोई अमाउंट पे लगाना है कि अच्छा जी 6000 पे Alt 8 ऑल द 6000, ये कमांड आपकी हो गई। तो लाइक दैट यू कैन मेक योर लाइफ इजी। तो इस टाइप की इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं फ्रेंड्स, जिसको आपने एक्सप्लोर करना है और अपनी लाइफ को इजी बनाना है। तो दिस इज कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर एक अच्छी कमांड एक और भी है इसके अंदर कि अगर आप चाहो तो इसके अंदर ये स्पीक भी कर सकता है, बोल भी सकता है। इसमें है कमांड्स नोट इन द रिबन, और इसमें अगर आप देखो ना इतनी कमांड्स है पेस्ट की, अमेज रह जाते हैं लोग। और वो कहते हैं पेस्ट के लिए हम इतना परेशान रहते हैं। इसमें पी पे आप जाइए और पी पे देखेंगे कम से कम अराउंड 25 कमांड्स आर देयर which are related to paste. All these commands are related to paste, and each and every command you can make a shortcut key. Paste and transpose, paste as a picture, paste as formatting, paste as formulas, paste and remove borders, anything you want। आपको लगता है यार ये paste as hyperlink, आपको कोई कॉपी करके जैसे पेस्ट किया हाइपरलिंक भी बन गया। आप सोचो कितनी इजी हो गई लाइफ। तो ये सारी कमांड आपके पास है, जब मर्जी यू कैन like insert it as a quick access toolbar and anytime you can remove। और इसी में एक चीज है speak, like Excel can speak also, Excel can talk also, like I am speaking with you, I am talking with you। So it is a such a wonderful tool, and not in 2020, it was available in 2007 also। You can go to your old version, so I am using it since 2007। ऐसा नहीं कि आज ही मेरे को पता लगा है, लेकिन आप लोग सोचिए कितना हमने मिस किया होगा पहले। इस टाइप की चीजें अगर हमारे को पहले पता लग जाती, कितना मेरा टाइम इजी हो जाता। स्पीक सेल्स पे गए और मैंने इसको ऐड कर दिया, राइट जी। ऐड करने के बाद अब अगर इसको मैं गया ओके कर दिया, तो यहाँ पे ये मेरा आ गया जी, यहाँ पे ओके। अब मेरे को इसमें बोलना है जी, ये मेरे को पढ़ के बताए, तो मैं इसको जा करके बोल देता हूँ कि भाई एक्सेल पढ़ के बताओ जी। और यहाँ पे जाकर के मैंने इसको ये नाम सेलेक्ट किया, एप्पल भी है और ये भी मैंने कर दिया। और यहाँ पे जाकर के मैं इसकी आवाज ये खोल रखी है मैंने। अब ये देखिए मैंने इसको किया स्पीक सेल्स। शुभम जी आवाज आ रही है भाई? हाँ जी सर, आ रही है सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो राजीव जी भी बैठे हुए हैं ना? हाँ जी सर भी हैं। हाँ तो राजीव जी अब अगर डबल डबल अंडरलाइन के लिए आपको बोले तो आपने चुपके से उसमें जो है ना शॉर्टकट की लगानी है। राजीव जी को बोलना है, बड़ा टाइम लगता है सर, आप ऐसी मतलब कमांड हमारे को मत बताएगा। सर ऑलरेडी लगाई हुई है सर मैंने। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए जी, अब ये आपको हमने किया, अब हम आगे बढ़ते हैं VLOOKUP के ऊपर। तो ये मैंने आपको बताया इजी टू मेक, आप इसके ऊपर काम करिए, रियली बड़ा मजा आएगा। मतलब आई कैन से आपको लगेगा यार वाकई एक्सेल के अंदर ऐसे ऐसी, और ऐसी एक चीज नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो मैं आपको ये कहता हूँ, मेरे भाई कभी यूट्यूब चैनल पे मेरी जगह जगह ये उस पर जाकर के आप देखोगे बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे। कोई पिवट टेबल से रिलेटेड आप ढूंढिए, वेब टेल के ऊपर ही तीसरा लेक्चर है। तो ऐसे आप जगह जगह, कल भी एक संजीव जी के साथ भी मेरा एक होना है, सीए जो संजीव सिंगल है हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर, तो कैसे हम एक्सेल को एज ए ऑडिट टूल की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। तो 1 घंटे की 1.25 घंटे की मेरी वहां पे भी है, तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कल मेरी एक मास्टर क्लास है डेट के ऊपर, टाइम के ऊपर, उसको भी आप ज्वाइन करना चाहें तो मेरी उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये चलिए जी VLOOKUP, लर्न डिटेल्ड VLOOKUP। अब क्वेश्चन आता है व्हाई VLOOKUP इज सो पॉपुलर। भाई वाकई ये VLOOKUP मैंने जो है ना एक्सेल के अंदर जो है, अगर सिनोनियम अगर एक्सेल का कोई पूछे मेरे से, लाइक जैसे पहले होता था भाई इसमें 80s के अंदर कि अच्छा जी गाड़ी का मतलब मारुति, मतलब मारुति का मतलब गाड़ी, गाड़ी का मतलब मारुति। जैसे पहले होता था कोलगेट का मतलब पेस्ट, पेस्ट का मतलब कोलगेट, मतलब दोनों में एक ही चीज हो गई, दो जबरदस्त सिनोनियम। Sir, I Yes, sir. think most of us cannot work, cannot present their reports, cannot make lengthy reports without VLOOKUP. So, So इसलिए that's sir, why we I'm find it saying, very important, sir. yes, that's why I'm saying। तो एक्सेल का जो सिनोनियम है लोगों ने जो है ना VLOOKUP ही बोल दिया एक किस्म से। लाइक जैसे मैंने बताया ना, एग्जांपल दिया कोलगेट, पहले लोगों को लगता था अच्छा तूने कोलगेट किया, मतलब उनको लगता था कोलगेट का मतलब पेस्ट, ये जो है कोलगेट ऐसा पॉपुलर हो गया। जैसे गाड़ी होती थी, हाँ जी उसके पास तो मारुति है जी, मतलब गाड़ी का मतलब मारुति है जी उसके पास, क्योंकि गाड़ी एक होती थी मारुति।
तो ऐसे VLOOKUP जो है दैट इज सच ए पॉपुलर कमांड, सच ए नाइस कमांड, एवरीबडी इज यूजिंग, लाइक इवन पार्टनर्स है, अरे यार वो VLOOKUP थोड़ा सा हमारे को यार करना है यार, VLOOKUP, हाँ वो लड़का यार इसको VLOOKUP आता है, मतलब वो एक्सेल का, मैं पूछ रहा हूँ एक्सेल आता है, हाँ ये लगा लेता है जी, तो VLOOKUP वगैरह आता है जी इसको, मतलब एक्सेल का मतलब VLOOKUP हो गया। तो ये वाकई बहुत बढ़िया कमांड है, वर्टिकल VLOOKUP इसको बोलते हैं, वर्टिकल लुकअप बोलते हैं। इसका एक छोटा भाई, स्मॉल लाइक younger brother is there, that is HLOOKUP, horizontal lookup, but most of the times 99% friends we are using only and only VLOOKUP. Now what is the concept behind it, why it is so popular, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, you will understand, आप काम भी कर रहे हो, बट उससे भी ज्यादा मैं आज आपको एक दो चीजें ऐसी बताऊंगा जो नॉर्मल से हटके होंगी, जो VLOOKUP को आप कैसे डायनामिकली आप यूज करके और अपने VLOOKUP को, अपने जो काम को काफी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, अपनी स्पीड को 10 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ा सकते हो। तो वो मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल लेकर के मैं दूंगा। बाकी एग्जांपल तो इतने हैं, 15 एग्जांपल 20 एग्जांपल इसमें होंगे, सिनेरियोज हैं, तो उसके लिए तो फिर कहीं ना कहीं आपको अलग से कोई ना कोई करना होगा। और मैं बार बार जैसे मैं बोलता हूँ कि वेबसाइट पे भी हमारा एक जो है ना VLOOKUP पे भी मास्टर कोर्स एक हमने छोटा सा डाल रखा है, जिसमें 15 सिनेरियो डाल रखे हैं VLOOKUP के ऊपर, 2.5 घंटे की क्लास है वो भी। तो मैं, आप कहोगे तो टाइम बचेगा तो मैं अपनी वेबसाइट पे दिखा भी दूंगा कि कैसे आप उसमें जा करके और यूज कर सकते हो, उसको कर सकते हो। तो ये देखिए जी, मेरे पास एक फाइल है, बी मास्टर ऑफ VLOOKUP, ये रो फाइल है, जो मेरी मास्टर क्लास है उसी की फाइल है। तो इसके अंदर मैं सारी चीज तो आपको नहीं कर पाएंगे, जितने भी सिनेरियोज हैं या डिफरेंट सिनेरियोज हैं मेरे पास, एग्जैक्ट मैच है, अप्रोक्सीमेट मैच है, लुकअप मैच है, पार्शियल है, ट्रिम है, 3 टेबल्स, डुप्लीकेट। तो इसमें से वी आर गोइंग टू यूज सम एग्जांपल। सबसे पहले एग्जैक्ट मैच, कि एग्जैक्ट मैच जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, कहां पे ये मेरे लिए काम करेगा। तो ये देखिए मेरे पास, आई एम हैविंग सम डेटा एंड दिस डेटा इज फॉर स्टूडेंट मार्क्स। आई एम हैविंग, विजय सर, यस सर। सर बिफोर यू स्टार्ट एक क्वेरी आई है, तो आई थिंक आप टॉपिक के साथ साथ अगर उसको ले लें सर। हाँ, संजय सर इज आस्किंग हाउ वी कैन यूज VLOOKUP फॉर 26 AS रिपोर्ट फॉर समरी इन ईच ट्रांजैक्शन विद डिडक्टर। तो ऐसा कोई एग्जांपल अगर आपके इसमें हो तो सर आप प्लीज दिखाइएगा। 26 AS रिपोर्ट भाई, VLOOKUP का मैं कंसेप्ट बता दूं, या तो लाइक इफ ही इज गोइंग टू शेयर मी सम सैंपल डाटा, इफ द एग्जैक्टली, तो मे बी आई कैन टेल कि उसमें VLOOKUP यूज होगा और सम अदर फॉर्मूला यूज होगा। तो कैसे, एक मैं आपको फ्रेंड्स, वैसे में एक हमारी जो है ना एक नया एक हमने वो कंसेप्ट तैयार किया अपने इस पे वेबसाइट पे, एनीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन सर। आल्सो सर, और उस संजय सर क्वेश्चन को आप अगर आपने फाइल कोई भी अगर बिजनेस क्वेरी अगर आप डालते हैं उसमें, संजय सर अगर आप फाइल तो हमको मेल कर दिए, वी कैन फॉरवर्ड इट टू आई वाज विजय जी। फ्रेंड्स, हाँ, तो मैं आपको फ्रेंड्स ये कह रहा था कि मेरी वेबसाइट पे जाके आप अपनी अगर बिजनेस प्रॉब्लम डाल दो, तो हम क्या करने वाले हैं, विदाउट एनी कॉस्ट हम आपका नाम लेकर के उसका हम बिजनेस सॉल्यूशन देंगे, उसको हम यूट्यूब वीडियो पे डालेंगे और उसका होगा तो एज ए प्रोडक्ट हम उसको या अपने वेबसाइट पे डालेंगे। तो आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम दे सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और हमारे पास एक वीडियो तैयार हो जाएगी जिसको हम आपके नाम से अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। तो आप उसमें डाल सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जाकर के अपना प्रॉब्लम डालो, एक साथ में फाइल अटैच करो, जो सिनेरियो है आपकी उसके ऊपर जो प्रॉब्लम हमारे को अच्छी लगेगी, जो लगेगा काफी लोगों के लिए यूजफुल है, उसके ऊपर मैं सॉल्यूशन दे करके और आपको मैं थैंक्स भी बोलूंगा और वो यूट्यूब की वीडियो भी आपको भेजूंगा। विजय जी, जी इसमें थोड़ा सा एक ये और बताएं, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि एक टेबल से हम सर्च करते हैं और दूसरे टेबल में जाके सर्च करते हैं, दोनों टेबल्स में डेटा सॉर्टेड होना चाहिए या एक में होना चाहिए, और जो सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, वो कहीं भी हो सकती है या एक्सट्रीम लेफ्ट होनी चाहिए। तो ये चीजें भी थोड़ा सा बता दें, हाँ, काफी लोगों की बिल्कुल क्वेरीज रहती हैं ये। नहीं बिल्कुल सर, वही मैं आपको जो है ना डिटेल में मैं बताऊंगा। चक्कर ये है कि थोड़ा हमारा टाइम का जो है ना कंस्टेंट रहता है राजीव जी, तो इसमें जब तक कि हमारे को ये चीजें जो है इसमें नहीं बने जैसे टाइम का, बट कोई बात नहीं, आई ट्राई टू गिव एज मच लाइक कंसेप्चुअली, जितना हो पाएगा मैं करूंगा कोशिश। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास डेटा है, यहाँ पे मेरे पास नेम है और सपोज करो मेरे पास यहाँ पे सीरियल नंबर भी मैंने लिखे हुए, 1 है 2 है, इस टाइप से मैंने सीरियल नंबर लिखे हुए। तो इस VLOOKUP को पहले तो समझना है कि फॉर्मूला है कहाँ पे, which library, which almirah this VLOOKUP formula is available. So when you go to this formula tab, we are having different like almirahs,
And if you see, one almirah is for lookup and reference. There is a lens is there. When I'm going to click this almirah, you are going to find lot of formulas which are related to lookup. So when you go to this lookup formula and you go to like the downside alphabetically, so you find this VLOOKUP. So when you click this VLOOKUP, this pop-up window is there. In this pop-up window, there are 4 arguments. These arguments are something like we have to give data. और ये जो arguments में जो separation है, that is with the help of comma. So if you are going to go with this window, pop-up window, then you don't have to worry where we have to put the comma. Excel automatically will take care. So I always suggest friends, whenever you are learning some formulas, whenever you are going to do some new formulas where you are not so confident, always please try to go with these function arguments. It will be very helpful. There will be very lesser chances of mistakes, and definitely you are going to learn. Why you are going to learn? Because step by step it is giving you help. So it is telling VLOOKUP, parallel to this VLOOKUP, what this formula is going to do, so that this narration is given. Then wherever the cursor is blinking, so on each blinking, so it is telling that what is the meaning of lookup value. So it is giving the narration of this lookup value. When you are clicking on this table array, it is giving the narration of this table array. What is this table array? So like that, you can read it and you can apply it. So the mistake chances will be very, very minimal. तो अब इसमें देखिए जी, अब लुकअप में क्या होता है कि हमारे पास कोई डेटाबेस आया, कोई भी डेटाबेस हो सकता है. जैसे आपने देखा होगा कि लाइक व्हेन सम एम्प्लॉय ज्वाइंस ए बिग कंपनी, सो द डे 1 व्हाट दे गिव, उसको एक यूनिक नंबर कोड दे दिया जाता है, एम्प्लॉय कोड जिसको बोलते हैं. सो दैट एम्प्लॉय कोड इज उसके साथ ही रहेगा, एम्प्लॉय के साथ. इवन एम्प्लॉय अगर छोड़ के भी चला जाए, वो एम्प्लॉय कोड कंपनी में कोई दूसरा यूज नहीं करेगा, परमानेंट उसका हो जाता है. वो चाहे वो 1 महीना ज्वाइन करे, चाहे वो 10 साल 20 इयर्स वहां पे काम करे. तो वो क्यों देते हैं उसको एम्प्लॉय कोड? बिकॉज एक यूनिक कोड हो गया, उसकी एक आइडेंटिटी हो गई. जैसे हमारा पैन नंबर है, जैसे हमारा आधार नंबर है, जैसे हमारा पासपोर्ट नंबर है. अदरवाइज नाम तो पता नहीं, अब शुभम नाम तो इतना पॉपुलर है, राजीव नाम तो इतना पॉपुलर है कि पता लगा जी किसी कंपनी में भाई 8 शुभम है जी, भाई 7 जो है ना, चाहे 6 वहां पे ये है. अब उसके अंदर अगर आप भाई लड़कियों के नाम देखोगे तो उसके अंदर भी काफी पॉपुलर नाम जैसे भाई है वहां पे. तो अब उसको अवॉइड करने के लिए यूनिक की, और यूनिक की का एक मतलब क्या है, ये यूनिक की कह लो, प्राइमरी की कह लो, बिकॉज एक्सेल जो काम करता है वो प्राइमरी की पे ही काम करता है, यूनिक की पे ही काम करता है. तो यूनिक की का क्या फायदा है उसका मैं आपको रीजन में बताता हूँ. अब जैसे मैंने ये नाम दे दिए, मनीष, दीपक, विनय, अमित, हेमंत, ये दे दिए, ये मेरे पास कोड है और ये मार्क्स है. तो जैसे आपने भाई एचआर डिपार्टमेंट में वी आर हैविंग बिग डेटाबेस, वी आर हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन, भाई एम्प्लॉय की जो है नाम है, फादर नेम है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर है, उसकी एक्सपीरियंस है, लाइक दैट वी आर हैविंग मे बी 50 ऑफ द कॉलम्स डेटा वी आर हैविंग, दैट इज कॉल्ड ए डेटाबेस. नाउ from that database, if you want to extract data for a particular employee, so it is very easy, and then Excel is going to be very, very helpful. So suppose you are having a database of just here 2 columns. So we are having this name, we are having this code, we are having this marks. So now this is the like lookup value. So right now my this database and my lookup value both are on same sheet. But practically what happens friends, ये जो मेरी डेटा होता है, ये मेरा यहाँ पे नहीं होता, ये मेरा किसी दूसरी सीट पे होता है. जैसे मैं इसको कंट्रोल एक्स करके और यहाँ ले गया, तो ये मेरा डेटा दूसरी जगह पे होता है. वो तो मैंने ट्रेनिंग के लिए आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट की सेम जगह. अदरवाइज डेटाबेस तो बड़ा ह्यूज होता है, इफ यू आर गोइंग टू हैव, तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसमें नेसेसरी प्रॉब्लम आएगी. बट अभी तो आप समझने के लिए आप इसको वहीं पे रहने दीजिए, यहीं पे हमारा ये अलग अलग जैसे हो गया. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आई वॉन्ट टू फाइंड द like Deepak, how much marks he got. So you see here the code, here the marks, but here we want to find the marks. Then maybe we want to know the code also. So now my VLOOKUP is formula is going to work. So when I type VL, automatically if I put the tab, so it takes VLOOKUP. And when I am going to click this FX insert function command or shift F3, that is the shortcut key for that. So automatically this pop-up window will be there. So now it is asking lookup value कि भाई what
वैल्यू यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, किसकी सर्च कर रहे हो, क्या चीज ढूंढ रहे हो, क्या चाहिए आपको। जैसे होता है ना, कोई मकान का कोई पूछने के लिए आया हमारे से और पूछे हाँ भी क्या चाहिए तेरे को, किसको देख रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो। तो ये चीज इसमें है कि इसने बोला जी मैं दीपक को ढूंढ रहा हूँ जी। ये दीपक की वैल्यू आ गई यहाँ पे कि लुकअप वैल्यू मेरी दीपक है, B15 है। अब ये दीपक की वैल्यू कहाँ पे ढूंढ रहे हो यार, कौन सी कॉलोनी में ढूंढ रहे हो आप, कौन सी जो है सेक्टर में ढूंढ रहे हो। अब ये तो बताना पड़ेगा ना, उस सेक्टर के अंदर यहाँ पे है जी, या किस गली है कोई, उसके अंदर 100 मकान है, तो इस 100 मकान के अंदर इस गली में ढूंढ रहे हो, तो पूरे मकान का आपने दे दिया, तो उसको बोलते हैं टेबल एरे। अब ऐसा तो है नहीं कि राजीव जी सपोज फरीदाबाद में रह रहे हैं और मैंने बोला कि मैं राजीव जी को ढूंढ रहा हूँ जी खंडेलवाल, और फिर उसके बाद मैंने गया और मैं फरीदाबाद का बताता ही नहीं, मैं उनको पीतमपुरा में ढूंढ रहा हूँ, तो बताओ जी कहाँ से मिल जाएंगे, या कोई और राजीव जी मिल जाएंगे। मैं उनके चक्कर में बोलूंगा यार वेबटेल वो पहचानेंगे नहीं मेरे को। तो यहाँ पे हम गए टेबल एरे में, तो मेरे को उसका एग्जैक्ट जहां पे ये चीज पड़ी है उसको देना है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, जो बड़ी गलती करते हैं, जो अभी भाई जो आप जो कह रहे थे कि जो गलती करते हैं, कंफ्यूजन है, वो क्या करते हैं, इस टेबल एरे को ये सीरियल नंबर भी है साथ में, और इसको पूरे को ऐसे हम जो है ना इसकी पूरी रेंज दे देते हैं कि ये ए से लेकर के, और हमने यहाँ से रेंज दे दी, ये दे दिया A5 से D12। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग। क्यों करते हैं, उनको लगता है यार ये तो डेटाबेस है, पूरा डेटाबेस दे दिया, नहीं। लेकिन इसके अंदर जो है टेबल एरे में ये जो लिखा हुआ है टेबल एरे, जो यहाँ पे इसकी जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इज ए टेबल ऑफ टेक्स्ट नंबर्स इन विच डेटा इज रिट्रीव्ड। टेबल एरे कैन बी रेफरेंस टू ए रेंज और ए रेंज नेम। और यहाँ पे लुकअप वैल्यू की जो बात कर रहा है, इज द वैल्यू टू बी फाउंड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। मतलब उसका फर्स्ट कॉलम आपने पहली बार देना है, पहला देना है। अगर आपने A5 दे दिया और दीपक यहाँ पे A5 में है ही नहीं, A कॉलम में है ही नहीं, तो ये आपकी आर्ग्यूमेंट गलत हो जाएगी, आपका ये गलत रिजल्ट देगा। इसकी जगह आपने फ्रेंड्स क्या देना है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका B होना चाहिए, और B के बाद चाहे Z तक चला जाए, चाहे वो 100 कॉलम्स हो सकते हैं, 1000 कॉलम्स हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अब ये माई रेंज भी दे सकते हो, या इसको ये पूरे को कॉलम को ऐसे आपने बना दिया, B4 से लेके B12 तक दे दिया आपने, ऐसे आपने दे दिया। अब यहाँ पे आपको पूछ रहे कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि पहला कोड की वैल्यू ढूंढनी है, कॉलम की, दूसरी कॉलम की, तीसरी कॉलम की। अब मेरा जो मार्क्स है यहाँ पे, ये कॉलम मेरा तीसरे नंबर का है। क्यों है जी, नेम से ढूंढना है मेरे को, ए से नहीं ढूंढना, क्योंकि मेरी वैल्यू इसमें बी से दे रखी है। तो बी कॉलम पहला है, सी कॉलम दूसरा है, एंड डी कॉलम इज थर्ड, and I want to find the value of marks. So here I can give 3 कि मेरा थर्ड कॉलम मेरे को चाहिए, and here the comes to the range lookup. Range lookup means कि मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 95, 98, 99% लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो फॉर्मूला होता है, उसमें एग्जैक्ट मैच ढूंढना होता है कि मेरे को एग्जैक्ट मनीष की जगह दीपक की जगह दीपक ढूंढना है। और जो अप्रोक्सीमेट मैच है, उसके साथ लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। उनको लगता है कि मनीष की स्पेलिंग गलत है तो वो चल जाएगा, अच्छा डॉक्टर लिखा हुआ है वो चल जाएगा। नहीं, अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो एक अलग कंसेप्ट है। अभी हमारे पास टाइम होगा तो मैं उसको आपको बताऊंगा अप्रोक्सीमेट मैच। तो अभी आप ये सोचो कि मेरे को एग्जैक्ट मैच ढूंढना है, तो व्हाट आई हैव टू गिव, आई हैव टू गिव एग्जैक्ट रेंज लुकअप में, एग्जैक्ट मैच इसमें लुकअप में 0। 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच, या इसकी जगह आप लिख सकते हो फॉल्स, कि फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच, और ट्रू का मतलब आपका ये है अप्रोक्सीमेट मैच। तो यहाँ पे आपने हमेशा फॉल्स ही देना है, ऑलवेज यू हैव टू गिव आइदर 0 और फॉल्स। अब इसके बाद आपने इसको ओके बोल दिया। जैसे ही आपने ओके बोला तो आपने देखा जी दीपक की वैल्यू 64, और यहाँ पे 64 आ गया जी, आपको नजर आ गया 64 वैल्यू। अब अगर इस 64 की जगह वैल्यू मेरी कुछ दूसरी भी होगी तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू भी आ जाएगी, राइट। अब दीपक की जगह यहाँ पे एक जरा सा भी मेरा डिफरेंस हो गया, दीपक के बाद एक स्पेस भी आ गया, एक्स्ट्रा स्पेस भी आ गया, ये देखिए एरर आ गई, बिकॉज एक्सेल के लिए दीपक एंड स्पेस बोथ आर डिफरेंट थिंग। कैसे डिफरेंट थिंग है कि अगर मैं इसकी लेन लगाऊंगा, लेन का मतलब लेंथ देखूं इस फॉर्मूले की, तो इट इज टेलिंग मी हियर इन दिस सेल दीपक टोटल कैरेक्टर्स आर 7, और यही फॉर्मूला अगर मैंने कॉपी करके यहाँ पे किया तो ये बोल रहा है ये इसकी जगह यहाँ पे, तो ये बोल रहा है ये जो दीपक है इसकी जो कैरेक्टर्स है वो 6 कैरेक्टर्स है, दैट्स व्हाई देयर इज ए डिफरेंस। तो ये काम नहीं चलेगा, इसकी जगह आपको फिर वो एग्जैक्ट मैच ये आपको ये करना ही पड़ेगा उसके अंदर, इसीलिए होता है यूनिक की होनी चाहिए आपकी, इसीलिए वो एम्प्लॉय कोड देते हैं वहां पे। विजय जी एक यह क्वेश्चन था, इसमें जो फॉर्मूला आ रहा था उसमें आ रहा था कि इट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर,
तो ये किसके लिए था असेंडिंग ऑर्डर? वो अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर, जिसके अंदर हम जो है ना एग्जैक्ट मैच नहीं करना हो, मेरे को अप्रोक्सीमेट मैच करना हो, और वो किस कंडीशन में करना होगा उसकी मैं बात करूंगा। अभी अभी हम जो बात कर रहे हैं सर, ये जो हम बात कर रहे हैं, अगर टॉपिक्स में हम टाइम की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैच की बात कर रहे हैं। जब अप्रोक्सीमेट मैच की बात करेंगे जिससे फॉर्मूला लाइक, तो अदरवाइज वीलुकअप के लिए देयर इज नो नीड टू सॉर्ट द डेटा, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। आपने तो बस केवल एक चीज आपने इंश्योर करनी है कि मेरा पहला कॉलम स्टार्ट होना चाहिए उस डेटाबेस से, और दूसरी चीज वो उसके अंदर वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट होगी तो भी काम करेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या करेगा, अगर दीपक की वैल्यू ये भी है और एक दीपक मैंने और डाल दिया यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू पकड़ेगा यहाँ पे, ये देखिए, तो यहाँ पे तो ये पहले दीपक को ढूंढेगा, और जो भी पहले दीपक की वैल्यू मिलेगी उसको यहाँ पे ढूंढ के लेके आ जाएगा। इन केस वी आर हैविंग द सेकंड दीपक, देन इट इज कंफ्यूज्ड। इसका तो एक्सेल का काम है, इसका फंडा। ये गया वहां पे, इसने पूछा उससे लाइक जना इन दिस स्ट्रीट आर यू दीपक, ही सेड नो। सेकंड मकान, आर यू दीपक, ही सेड नो। थर्ड मकान, आर यू, कि मेरे को थर्ड वाले को पता करना है, ढूंढना है कि मेरे को भाई 50s वाले को ढूंढना है या 100s वाले को ढूंढना है, वो कंफ्यूजन है। उसको तो पहला मिलेगा, उसकी वैल्यू लेकर के आ जाएगा। राइट जी। तो अभी हम आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास आ गया इसके अंदर ये दीपक। अब यही फॉर्मूला अगर मैंने ड्रैग कर दिया यहाँ पे, और नीचे मैंने ड्रैग कर दिया, और इसके बाद मैंने जाकर के देखा कि ये फॉर्मूला आगे काम करेगा कि नहीं करेगा। ये 99 आ गया जी। आदित्य की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 99 आ गई। अब इसके बाद इसी तरह से अगर मैंने आगे ड्रैग कर दिया तो मनीष की वैल्यू आ गई 42 आ गई। लेकिन अगर सपोज करो, अगर मैंने दोबारा से मनीष की वैल्यू देखी यहाँ पे, और अब की बार मैंने ड्रैग किया, तो क्या होगा जी शुभम जी? यहाँ पे क्या आएगा आपकी बात? दोबारा मैंने मनीष को किया और इसको पकड़ के मैं नीचे खींच दिया, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? सर वो सेम आ जाएगी। सेम आ जाएगी ना। और ये हाँ जी। देखिए ये एरर आ गया जी, एरर आ गई जी। अरे अब ये देखिए, ये कंफ्यूजन होता है। ये फिर हमारे को लगता है यार एक्सेल तो बेकार चीज है, यार एक्सेल तो मैं सीख ही नहीं सकता। अब उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी फील सच ए। अगर आज आप कंसेप्ट सीख लोगे, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ यार मेरी क्लास आप क्यों ज्वाइन करो, मेरे आप कोर्स क्यों ज्वाइन करो, क्यों आप जाकर के ज्वाइन करो, क्योंकि मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ। बाकी लोग जो है वो चीज रटाने की बात करते हैं, रटने की बात करते हैं। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, जब हमने यहाँ पे दिया रेंज दी B4 से D12, मैंने ये रेंज यहाँ से दे दी थी, मैंने सोचा चलो ऊपर से दे देते हैं स्टूडेंट मार्क से, तो ये, लेकिन एक गलती मैंने कर दी। क्या गलती की? जब मैं नीचे आया तो ये आदित्य को सिलेक्ट किया तो ये रेंज B5 से D13 हो गई। जब मैं और नीचे आया तो यहाँ पे रेंज क्या हो गई? चलो रेंज खत्म हो से गई लेके उसमें। हाँ जी। एक एक रेंज नीचे बढ़ती चली जा रही है। और अब जब मैं मनीष दोबारा पे आया तो ये देखिए मनीष की रेंज यहाँ से वो गायब हो गई। अब ये क्यों? अब इसका क्या इलाज है जी? ये तो एक्सेल डॉलर का फंडा है। वो एक एक रेंज अगर सर, नीचे जाएंगे तो नीचे सर तो डॉलर डॉलर लगाने पड़ते हैं, उसको एब्सोल्यूट मैच बोलते हैं। यस सर, एब्सोल्यूट मैच। तो वो एब्सोल्यूट मैच लगाना अगर आपको आएगा तो आप कर सकते थे। इसमें क्या करना था आपने? ये जो B4 से D12 था, इसको आपने F4 दबा दिया। F4 से ऑटोमेटिक डॉलर लग जाते हैं। अब कई उसको डॉलर लगाने में भी मैनुअल लगाते हैं, धीरे 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 टाइम लगेगा ही लगेगा। जब इसमें शॉर्टकट कीज पड़ी हुई है तो उसको यूज करो ना जी। F4 ऑटोमेटिकली डॉलर लग गए। अब की बार मैंने इसको एंटर किया और पकड़ करके इसको खींचा, तो देखिए इसमें आ जाएगा। अब मैं इसमें नाम अगर नया डाल दिया विजय, तो एरर आएगी क्योंकि वहां पे विजय नहीं है। अब अगर मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया भाई राजीव, तो मेरी की एरर आएगी यहाँ पे, क्योंकि वहां पे ऊपर डेटा राजीव का है ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपने फ्रेंड्स धीरे धीरे कंसेप्ट वाइज जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज है। लेकिन अगर राजीव की वैल्यू यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ये चीज ठीक हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट था जो सिंपल VLOOKUP का, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, सबको आना चाहिए। अब जो इसके और जो हमारी को जो बात करें कि डीप डाइव की जो बात कर रहे हैं, तो डीप डाइव की जो बात कर रहे हैं उस पे आज यही चीज अगर कोड की निकालनी हो तो यही फॉर्मूला फ्रेंड्स मेरे को कॉपी करना है। Ctrl+C किया मैंने और Ctrl+V किया। अब की बात 3 की जगह मेरे को क्या करना है? 2 लगाना है बस, और कुछ नहीं चेंज करना। ओनली थिंग आई हैव टू चेंज दैट 2, कि मैंने 2 को चेंज किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेकंड वाले उसको लेकर के आ जाएगा, कोड की वैल्यू को लेके आ जाएगा। और इसको इससे मतलब नहीं कि वहां पे नंबर होना चाहिए, इसकी जगह C1 हुआ यहाँ पे और ये मैंने पकड़ के खींच दिया, तो जो वैल्यू होगी वही लेकर के आ जाएगा। विजय वहां पे नहीं है तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। और इस एरर को अवॉइड करना है, कई बार हमारे को टोटल करना है जी, और ये एरर आ गई,
बड़े लोग क्या करते हैं बेचारे, अब उसमें जाएंगे, फिल्टर लगाएंगे और एरर को जाके जीरो कर देंगे। सत्यानाश, लाइक जो है ना, आई से बिल्कुल आपने डेटा को जो है ना, रिपोर्ट को बिल्कुल बेकार कर दिया। क्या ब्लंडर कर दिया आपने। अब आपने जाकर के इसको फिल्टर लगाया और 4 जगह पे एरर आ रखी थी। आपने गए, आपने तो अपनी स्मार्टनेस दिखाई कि मेरे को तो एक्सेल बढ़िया आता है, और यहाँ पे जाके जीरो कर दिया इसको, यहाँ पे जाकर के जीरो कर दिया, और जी मेरा टोटल लग जाएगा जी अब इससे। अरे टोटल तो लग जाएगा, वो तो ठीक है कि अब यहाँ पे गए और आपने इसको टोटल तो लग जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर बाय द वे आपका जो डेटाबेस है, कल को यहाँ पे विजय नाम आ गया जी, आ ही सकता है ना विजय नाम, यहाँ पे आप गए और आपने बोला जी ये तो विजय की एक एंट्री आ गई यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे विजय की वैल्यू तो आप जीरो कर चुके हो, फॉर्मूला नहीं है, लेकिन राजीव की वैल्यू अगर 60 की जगह सपोज करो यहाँ पे 100 हो गई, तो देखिए ये तो चेंज हो गया 100, लेकिन विजय की वैल्यू भी चेंज हो गई थी, आ गई थी वैल्यू, यहाँ पे वो जीरो ही रह गया। अब ये बड़ी मिस्टेक करते हैं। अब फिर वो कहते हैं अरे अरे यार ये तो किया था, अब दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, बस इसी में लाइफ निकल जाती है, इसी में रात को फिर 10 बजे सर आई 11 थिंक बजे ये बल्क में हो तो ये ढूंढनी पड़ेगी वैल्यू, हाँ ढूंढनी डेटा पड़ेगी। में फिर जाके वो चाहिए भाई हो सकता है कोई तो ऐसी भी बहुत टाइम वैल्यू है लगेगा इसमें तो। एक्चुअल में जीरो, तो इसको हमने क्या अवॉइड करना था, इसकी जगह हमने क्या करना था, एक इसको इफ एरर का फॉर्मूला होता है कि मेरी अगर एरर आए, लॉजिकल फॉर्मूला है ये, इफ एरर अगर आए मेरी ये VLOOKUP के अंदर, तो मैं क्या करूं, तभी ये जीरो करे, अगर एरर नहीं आए तो जीरो करे नहीं, जो वैल्यू आए एरर आए उसको लेके आए। इसका फायदा क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने किया और जैसे मैंने इसको पकड़ के नीचे खींचा तो वैल्यू आ गई। अब अगर मेरा नाम में अगर कोई नया नाम आ गया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे जाकर के और भाई नाम डाल दिया इसके अंदर, और मैंने इसमें नाम डाल दिया आकांक्षा, तो जैसे आकांक्षा किया तो यहाँ पे जीरो वैल्यू हो गई। क्यों, आकांक्षा वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। और इसका फायदा ये होगा कि कल को आकांक्षा यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू डेटा में, तो यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो मेरा जो रिजल्ट है वो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, सारी चीजें मेरी स्मूथ चलती रहेंगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि VLOOKUP सीखना वो बढ़िया है जी, इफ एरर भी हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आपस में दोनों को कनेक्ट करना, उसको डिश बनाना, उसकी जैसे आपस में जोड़ करके, भाई तभी तो होगी ना। चाय बनाने के लिए दूध भी अब आपके पास है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि दूध कितना मिलाना है और चाय पत्ती कितनी डालनी है, तो आपको बेकार हो जाएगा, चीजें वो अपने आप में इंडिविजुअली जो है वो खराब हो जाएंगी। तो इस टाइप की चीजें आपने सीखनी है जी, इफ एरर को कहाँ पे यूज करना है मेरे को। अब इसमें चीजें तो बहुत है जी, इफ एरर ये मैंने जैसे VLOOKUP का बताया आपको, एरर आ गया, डेटा वैलिडेशन है, रेंज बनानी है, हॉरिजॉन्टल लुकअप है, तो इतना नहीं है। बट मैं एक आध चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेट मैच, कि अप्रोक्सीमेट मैच कैसे हम चूज कर सकते हैं। जो आप सॉर्टिंग की बात कर रहे हो, ये जो कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो है ना, मैंने ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में, MNCs में, लोगों के लाख लाख रुपए के पैकेज हैं, वो भी बेचारे मैनुअल काम करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि यार VLOOKUP इतना पावरफुल है, इस काम को जिसको हम पूरा पूरा दिन लगाते हैं, वो काम ये 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट में कर सकते हैं। भाई क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना हॉरिजन जो है वो बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि बस जो चीज सीख रखी है बस उसी पे, वो चेंज होने को तैयार ही नहीं है। अब आप लोग कितने, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जानता हूँ, आज भी वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, 2007 यूज कर रहे हैं। और फोन कौन सा यूज कर रहे हैं, फोन भाई पता लगा जी एप्पल का यूज कर रहे हैं, 80,000 का फोन यूज कर रहे हैं, जिसका काम का क्या है, खाली बस वो बटन दबाने हैं, फोन करना है। और एक्सेल जिसके ऊपर उनकी पूरी रोजी रोटी है, जिसके ऊपर ब्रेड एंड बटर है, जितना काम कर रहे हैं, वो पुराना 13 साल पुराना यूज कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए उनको, मतलब एक्सेल में लड़के ने अगर बोल दिया कि अरे सर मेरा ये कंप्यूटर खराब है, मेरा ये एक्सेल में ये वर्जन नहीं चलता, या दूसरा दिलवा दो जी, 2013 दिलवा दो, ऑफिस 365, अरे नहीं यार काम तो चल रहा है तुम्हारा। और बीवी ने बोल दिया कि वो नया फोन, वो 6 महीने पहले फोन ले रखा है 50,000 का, 80,000 का फोन, 1 मिनट आवाज नहीं निकली। शुभम जी सर सही क्या? कह रहे हैं सर, आप एकदम सही कह रहे हैं तो सर। बताओ, आई वो थिंक जो सर 80,000 रुपये आएंगे, ऑफिस 50,000 रुपये आएंगे, वो तब आएंगे ना जब आपका एक्सेल बढ़िया होगा, अगर आपका स्टाफ के पास बढ़िया लैपटॉप होगा, बढ़िया उसके पास लेटेस्ट चीज होगी, अब तब तो आपके वो 80,000 भी कमाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको तो दिया नहीं और ऐसे ही खर्चा कर रहे हो, तो बताओ क्या फायदा होगा उसका। फ्लैश फिल की कमांड आपको पता है, मैंने पिछली क्लासेज में आपको बताई थी, आप इनकी वेबटेल की यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना कि वो फ्लैश फिल की कमांड कि कैसे दिन का काम आपकी सेकंड्स में कर सकती है। लेकिन वो वर्जन उसके लिए 2013 होना चाहिए। अभी नए नए फॉर्मूले आए हैं, अभी एक्स लुकअप आ गया, VLOOKUP का बाप आ गया एक, वो जो फॉर्मूला है वो VLOOKUP तो भूल ही जाओगे आप आने वाले टाइम में। एक्स लुकअप मैं कह रहा हूँ 100 टाइम्स पावरफुल होगा वो, लेकिन वो एक्स लुकअप कब आएगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 में, लेटेस्ट वर्जन में। उसके लिए आपको साल के 5,000 रुपए 4,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो चलेगा जी।
अब आपको लगता है मेरा काम चल रहा है, चलाओ जी काम। किसने काम तो आपका, मैंने बताया ना, पहले लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती थी, पैदल जाते थे, काम चलता था। हवाई जहाज तो बाद में स्टार्ट हुए ना जी, काम थोड़ी रुक रहा है किसी का। पहले मैनुअल बुक्स होती थी, काम तो तब भी चल रहा था। तो आपने काम चलाना है कि आपने भागना है, वो आपके डिसाइड करना है। चलिए जी, अब ये देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, मैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट है, अगर आप लोगों को भाई ये जो VLOOKUP के बारे में बिकॉज ऑफ टाइम अगर आप लोगों को कोई करना हो, तो मेरी जो चैंप एक्सेल एक वेबसाइट, ये जो है ना champexcel.com है, तो कल को अगर किसी का इंटरेस्ट बनता है और लगता है यार हमारे को आगे चीजें ढूंढनी है, करनी है, तो ये champexcel.com पे, यहाँ पे आप जब कोर्स पे जाओगे, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट इसलिए रखी हुई है, ये देखिए, XLOOKUP न्यू फॉर्मूला ऑफ एक्सेल इज एन अपडेटेड फॉर्मूला व्हिच विल रिप्लेस VLOOKUP एंड इंडेक्स मैच फॉर्मूला। इसके ऊपर भी हमारा जो है ये डिटेल आ जाएगी। मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट फॉर्मूलाज, बेसिक टू एडवांस, मास्टर क्लास ऑन चार्ट्स, ऑटोमेशन ऑफ फाइनेंशियल्स, कैसे ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनानी है हमारे को। इसी तरह से बिकम मास्टर ऑफ VLOOKUP। अब ये जो VLOOKUP था, ये छोटा सा एक हमारा वो है कोर्स, इसको अगर आप लोगे, फाइल भी मिल जाएगी, सारी चीज मिल जाएगी, और इसके ऊपर आप मास्टरी करो। 2 बार देखो, 100 बार देखो, 50 बार देखो वीडियो की आपको, और हर एक उसके अंदर जो है ये मिलेगी। तो इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, जिसमें मैंने 15 तरह के सिनेरियो यहाँ पे बना रखे हैं, इन केस अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो तो। इसकी हम बात कर रहे थे कि हाउ VLOOKUP सीज इट। अब मेरी कई बार क्या होता है, मेरे को कमीशन निकालना है जी। कैसे निकालना है? जैसे सेल होती है, अब किसी ने हमने बोला कि मेरा जो एम्प्लॉय है, अगर उसने सेल की 0 रुपए से लेके 1000 रुपीज तक की सेल की, तो उसकी कैटेगरी जो है वो पुअर है, हम उसको कोई कमीशन नहीं पेड करेंगे, उसको कोई इंसेंटिव पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने सैलरी सेल की 1000 से 2500 के बीच में, तो वो एवरेज की कैटेगरी में आएंगे, उसको हम 20 रुपीज का कमीशन पे करेंगे। ये मेरी स्लैब बनी हुई है, जैसे इनकम टैक्स की स्लैब होती है। अगर उसने 10,000 रुपए से ज्यादा की सेल कर दी, वो एक्सीलेंट कहलाएगा, और उसको हम 700 रुपीज उसमें से कमीशन देंगे। आउट ऑफ 10,000 700 रुपीज का हम कमीशन देंगे। तो सेंस बनती है, बिजनेस सेंस बनती है ये, कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो सेल जो करेगा वो एग्जैक्ट 1000 की करेगा या 2500 की करेगा, 7000 की करेगा। अब वो सेल तो कितनी भी अमाउंट की हो सकती है। अब वो किसी ने 9425 की कर दी, किसी ने 24,500 की कर दी, किसी ने 1100 की कर दी, किसी ने 999 रुपए की कर दी, कोई भी फिगर हो सकती है जी। अब मेरे को कमीशन का कैलकुलेशन करनी है। अब वो लगाएगा, VLOOKUP फॉर्मूला लगाएंगे, तो VLOOKUP तो 9425 को ढूंढना है। अगर उसको इसके अंदर VLOOKUP लगा दिया मैंने, कोमा लगाया, ये जो चीज VLOOKUP तो जो आता है सबको, उसके अंदर हम गए और यहाँ पे जाकर के मैंने बोला जी ये टेबल है जी मेरा, यहाँ से मैच कर रहा है, ये सॉरी, पहले मैंने ये दिया और यहाँ पे जाकर के मैंने दे दिया कि ये मेरी टेबल है जी। अब की बार मैंने डॉलर भी लगा दिया, चलो इतना भी मैं समझदारी कर दी। तीसरा नंबर 1 2 3 ये भी कर दिया, और एग्जैक्ट मैच 0 भी दे दिया, लेकिन यहाँ पे फिर भी एरर आ गई। अब इसको मैंने खींचा नीचे, सब में एरर आ गई। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मेरा तो 1000 रुपीज की सेल हुई है, तो ये वैल्यू आ गई 20 रुपए। अब क्या करूं जी, मैं सारे को इतना बड़ा डेटा खींच दूं क्या, 1 रुपए से लेके और 10 लाख रुपए तक का मैं एक लाइन खींचूं और सबके आगे लिखूं, किसी के आगे 20, किसी के आगे 100, किसी के आगे, मेरा तो पूरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। और कल को मेरी अगर ऐसी सेल हो जिसमें 50 लाख की भी सेल हो रही है, 1 करोड़ की भी सेल हो रही है, तो मेरा तो कंप्यूटर में आएगा ही नहीं, नंबर ही नहीं आएंगे, इतना हाई वो हो जाएगा। कल को फिर मेरे बॉस ने बोल दिया कि अच्छा यार ये 2500 की जगह एक स्लैब और बना दी बॉस ने, कि एक काम करो यार, 2500 से लेके 7000 के बीच में तो ज्यादा है, इसके बीच में 5000 की स्लैब और बनाते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं बेटर। इसके अंदर कमीशन हमने 150 रुपए कमीशन देना है जी। और फिर उसके बाद हमने इसको पकड़ करके नीचे खींचा, तो ये देखिए इसके अंदर आ गया 5000 से, ये यहाँ से मैं गया, ये आ गया 5000 से 7000, 7000 से 10,000, और ये आ गया जी। अब उसके बाद फिर उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो लोग क्या करते हैं, इसके लिए इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। और वो जो इफ का फॉर्मूला होता है, बिलीव मी फ्रेंड्स, उस फॉर्मूले को देख करके आदमी को डर लगने लग जाए कि अरे यार ऐसा फॉर्मूला क्यों। प्रॉब्लम क्या होती है उस फॉर्मूले के अंदर, अगर आप जाकर के देखोगे ना, यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मूला होता है वो, ये इफ H4 लेस देन 1000 तो 0, इफ H4 लेस देन 5000 तो ये, अगर ये है तो ये है तो ये, और ऐसे लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। एक कहीं से कोमा में दिक्कत हो जाए, कहीं पे ब्रैकेट में दिक्कत हो जाए, सारा का सारा बेकार हो गया। और कहीं पे अगर गलती से परसेंटेज लग के, कमीशन लग करके उसकी पेमेंट हो जाए, तो फिर तो आपकी नौकरी भी गई, और साथ में पता लगा जी आपका बर्तन तक बिक जाएंगे आपके, अरे यार ये तो गलती कर दी। और फिर उसके बाद बॉस का तो काम ही ये है, मैंने बताया ना 1 मिनट लगेगी, आपने तो खूब मेहनत करके किसी तरह एक फॉर्मूला भी लगा लिया,
और बॉस ने तो 1 मिनट लगेगी, अरे बेटा एक काम करो, ये जो 2,500 जा रहा है ना इसको तो 3,000 रुपये कर दो, और इसको ये 5 जा रहा है ना इस स्लैब को हटा दो यार। अच्छा यार बेटा एक काम करो, एक स्लैब और बना दो इसके अंदर 0,000 के बीच में 500 की और डाल दो। मतलब उसने तो बेटा बेटा करके आपको 1 सेकंड 2 मिनट उसने लगाई, और आपके वहां पे जो है बीपी जो है ना वो होकर के हो सकता है हार्ट फेल हो जाए। अरे यार मैंने तो आधा दिन 1 दिन करके मुश्किल से तो फॉर्मूला बनाया था, और ये सारा का सारा चेंज हो गया। और ऊपर से उसने बोल भी देगा बॉस, अरे यार ये थोड़ा जल्दी करके दे देना मेरे को मीटिंग में जाना है। हो सकता है मीटिंग में जाना ही नहीं हो सकता है उसने फाइल देखनी नहीं हो, लेकिन उस पर प्रेशर बनाने के लिए तो बोल ही देगा, अरे यार ये जल्दी भेजना मेरे को, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर पे। हो सकता है वो अपना पार्टी बनाने जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेल चेक भी होनी कि नहीं होनी है, लेकिन आपकी तो सारी पार्टी चलेगी। तो वहां पे आपको स्मार्ट बनना है। वहां पे आपने अगर एक्सेल में स्मार्टनेस बन गई ना, तो वो देखना बॉस जो है वो आपको छोड़ ही नहीं सकता, आपके पास टाइम ही टाइम बचेगा। तो यहाँ पे आपका वी लुकअप बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। और यहाँ पे अब काम आएगा आपका अप्रोक्सीमेट मैच। जो अप्रोक्सीमेट मैच है वो यहाँ पे आपके लिए हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच, वो देखिए जी कितनी गजब की ये फॉर्मूला। और ये ऐसा नहीं कि 2007 में, 2003 में भी था, 2000 में भी था, 97 वर्जन में भी था एक्सेल के। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल लगाइए वी लुकअप। जैसे लोग आते थे बिल्कुल वैसा ही वी लुकअप लगाइए, बस कोई भी चेंज नहीं करना आपने, बिल्कुल वैसा का वैसा। टेबल एरे जैसे आपने दी थी टेबल एरे वैसी टेबल एरे दे दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है जी। इंडेक्स नंबर अभी जो किया था वही इंडेक्स नंबर दे दीजिए, 3 नंबर। यहाँ पे अभी आपने 0 दिया था, बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है, 0 की जगह 1 कर दीजिए। ओनली 0 की जगह 1 या फॉल्स की जगह ट्रू। इतना छोटा सा चेंज करते ही आपकी लाइफ जो है, जो जिसमें आपके घंटों लग रहे हैं वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपने इसको किया, इसको ओके बोला, अब ये देखिए 9425 और इसने बता दिया मेरा कमीशन 250 रुपीज। जैसे इसको खींचा 24,500, 700 रुपये कमीशन है जी। इसको पकड़ के खींचा नीचे तो यहाँ पे ये आ गया, इसको पकड़ के खींचा ये आ गया 999 रुपए, तो 1000 से कम है तो 0 कमीशन आ गया इसका। कैसे काम कर रहा है ये? अब ये जो कंसेप्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने लगाया, जो अप्रोक्सीमेट मैच जिसको बोलते हैं, जिसको आप सोचते हो कि मिस्टर है, एलटीडी लिमिटेड, वो उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ये डेटा था आपका, वो क्या कर रहा है, 0 से 0 को ढूंढ रहा है, और 0 के बाद वो 1000 को देख रहा है। तो 0 से लेके जब तक उसको अगला नंबर नहीं मिलता, उन सब की कैटेगरी को वो ये मान लेता है 0 to 1000 जो है वो ये है। 1000 से 3000 जैसे ये आ रखा है इधर, 0 to 1000 ये है, 1000 से 3000 ये है, 3000 से 7000 ये है। तो जैसे मैं इसको अगर 8000 करूंगा, अब ये क्या हो जाएगा, 3000 to 8000 आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, 8000 से लेके 10000 आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो कैटेगरी, और 10,000 से ऊपर जो है, जितना भी 10,000 से ऊपर है, जितना भी इसके बाद वाली वैल्यू है, वो सारी आपकी ये बाद की हो जाएगी कि ग्रेटर देन 10,000, चाहे वो लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, उसमें 700 रुपये आ जाएगा। तो ये जो चीज है, ये इसका एक फॉर्मूला बन गया। बट इसकी जो कंडीशन है, जो शुभम कह रहे थे कि अप्रोक्सीमेट में असेंडिंग डिसेंडिंग, वो असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब मेरी ये जो टेबल है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? नहीं तो एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा। एक्सेल के आगे एक 0 आ जाए, यहाँ पे उसके आगे 4000 आ जाए, फिर यहाँ पे 2500 रुपये आ जाए, तो वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसकी जगह आपने इसको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में भेजना है जी। जब ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो उसके बेस पे ये प्रॉपर आपकी कैलकुलेशन होगी जी यहाँ पे, और ये आपको देगा। आप इसमें नंबर जितने मर्जी चेंज कर दीजिए, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पे रैंड बिटवीन, और ये आपको प्रॉपर आपके लिए काम करके देगा जी। ये मैंने किया और यहाँ पे जाकर के मैंने कोई भी नंबर डाल दिए जी। अब चाहे 6293 डालूं, ये जो भी डालूंगा, देखिए ये रैंडम नंबर है, और अपने आप से ये डेटा आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ब्रैकेट चेक कर लीजिए, कोई भी गलती आप ढूंढ नहीं सकते इसके अंदर, बिल्कुल वही की वही। और 1 सेकंड में अब बॉस ने बोल दिया कि अच्छा यार एक काम करो शुभम, ये 1000 की जगह इसको 500 में डाल देना यार, एक नई एवरेज वो कर देना। अब वहां पे आपने प्ले करना है रोल। बॉस ने बोल दिया 10,000 नहीं, हमारी 15,000 रेंज कर दो सबकी। तब बॉस को आपने बोलना है सर ऐसे थोड़ी होता है, टाइम लगेगा इसमें, आपने तो 1 मिनट लगती है, मेरे को इसमें आधा दिन लगा था, अभी कम से कम आधा दिन तो नहीं तो 3 घंटे तो चाहिए मेरे को। अब वो 3 आवर्स बॉस से लेना है और 3 मिनट में काम करना है, और वो 3 घंटे जो आपने बचाए हैं, उस 3 घंटों में आपने एक्सेल को सीखना है, आपने दूसरी नई नई चीजें सीखनी है। मेरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर विजिट करना है, कोई दूसरा यूट्यूब चैनल विजिट करना है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, लोगों को नई जो फाइलें हैं उसको आपने इजी बनाना है। तो दैट्स व्हाई यू कैन मेक योर लाइफ सिंपल। उससे आपकी लाइफ सिंपल होगी
तो स्मार्टनेस होगी तो आप देखिए कैसे टाइम भी बचेगा, आराम से अपने बीवी के साथ भाई डिनर भी करोगे, यू आर गोइंग टू हैव गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर भी देखोगे। अदरवाइज तो ऐसे ही फाइनेंस की नौकरी करते हुए सैटरडे संडे कोरोना के दिनों में भी घर पर बीवी के साथ नहीं बैठ करके कंप्यूटर के आगे बैठे रहोगे रात को 10 बजे भी 11 बजे भी। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि एक्सेल अगर बढ़िया से सीखोगे तभी आपकी लाइफ जो है बढ़िया होगी बीइंग ए फाइनेंस पर्सन। तो बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो टाइम है 12 to 1:30 है, चीजें बहुत हैं बट दो ही चीजें हमने ले पाए इसके अंदर। और अगर टाइम होगा इन फ्यूचर राजीव जी, आई एम श्योर कि फिर दोबारा मौका देंगे तो ये मैं बहुत कुछ इसमें कर सकता हूँ, कैसे 3 टेबल के ऊपर मैच करना है, डायनामिक वी लुकअप मैच है, तो चीजें तो बहुत है कि डायनामिक 2 वे लुकअप है कि इसके अंदर मैं चाहे मंथ इंसर्ट करूं या नहीं करूं, मेरा कॉलम नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप की चीजें जो है बन सकती है इसके अंदर। तो उसके अंदर कैसे मेरे को मैच का तड़का लगाना है, कैसे मेरे को इंडेक्स करनी है, ये सारी चीजें हैं जी। तो बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आई एम सॉरी कि मैं आपको पूरा ये नहीं बता पाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम जो है इसको करेंगे। ठीक है जी शुभम जी, और कोई क्वेरी हो तो 10 मिनट 5 मिनट वी कैन हैव सम क्वेरीज अगर आप बिल्कुल कुछ, अदरवाइज कोई फिर भी रहेगा तो आई एम गोइंग टू शेयर माय ईमेल आईडी, मेरा ये फोन नंबर, ये देखिए मेरा जो है ना, तो ये मेरा नंबर है, इस पे वीलू का ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इस पे अपना कोई एक मैसेज डाल देंगे तो एक ग्रुप में हम आपको शामिल कर लेंगे। तो उससे क्या होगा आपको फायदा कि आपको हमारे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, नई वीडियोज हैं, टिप्स हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। तो आप उसके अलावा मेरा जो चैनल ये वेबसाइट है इस पे आप विजिट करें, जैसे मैंने दिखाया आपको, वहां पे ऑटोमेशन की भाई फाइल है कोई, और बिल्कुल नॉमिनल हमने प्राइस रखे हुए जी, ऐसा नहीं कि कोई लंबे चौड़े, कोई 400 कोई 500 कोई 800 ऐसे, और उसमें आपकी 5-5 घंटे की लर्निंग है, वीडियोज हैं, फाइल्स हैं और साथ में सपोर्ट है। तो वो सब चीजें आप इसमें देख सकते हो जी। और ये नंबर पे आप वैसे फोन भी कभी जरूरत हो तो कर सकते हो, बट व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप आप करिए और डेफिनेटली आपको और हेल्प मिलेगी जी। हाँ सर, आई विल टेक वन ऑफ द डाउट। सर एक क्वेश्चन है, वी आर हैविंग 2 दीपक एट सोर्स, हाउ वी विल गेट कंसोलिडेटेड वैल्यू? हाँ, कंसोलिडेटेड वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी जी। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है एकदम जायज क्वेश्चन है। इसके अंदर जैसे ये जो दीपक था कि यहाँ पे आपकी जो दीपक की वैल्यू थी, एक दीपक यहाँ पे, एक दीपक यहाँ पे है, राइट। और इनको ये चाहिए कि मेरे को इन दोनों दीपक के अंदर, मैं थोड़ा कलर करके दिखा देता हूँ ताकि लोगों को ये समझ में आए कि 2 वैल्यू है जी मेरी, और मैं इसमें वैल्यू भी एक में डाल देता हूँ 100 और एक में डाल देता हूँ 500। अब आप ये चाहते हो कि यहाँ पे जो दीपक की वैल्यू हम ढूंढे, यहाँ पे ये जो आ रखा है ये 100 आ रखा है जी, ये तो पहली वैल्यू को पकड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि ये पहली को ना पकड़े, ये पहली की जगह मेरे को 100 + 500 दोनों को पकड़ के 600 वैल्यू दे दे। तो मैं कैसे कर सकता हूं? ये बिल्कुल हो सकता है। होने को तो ये भी हो सकता है कल को अगर आदमी कोई चाहे कि ये ऐसे वैल्यू आ जाए जी यहाँ पे कि मेरा ये पहले 100 आ जाए, कोमा लग करके 500 भी आ जाए, तो इस टाइप का भी काम हो सकता है। लेकिन इस टाइप के मैं प्रोजेक्ट्स जैसे ऑटोमेशन टाइप के मैं काम करता हूँ, उसमें इस टाइप की चीज होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा वो आपके सर के ऊपर से जाएगी चीज। तो आपने इस टाइप का काम हो, किसी को ऑटोमेशन कराना है, कोई कराना है, तो आप मेरे को बताओगे, मैं आपको करके आपको टेम्पलेट बना के दूंगा। आपने डाटा डाला, अपने आप चेंज हो जाएगी। आपने आम खाने की पेड़ गिनने, भाई गाड़ी चलानी आनी चाहिए आपको। वो गाड़ी कैसे बनी, किसने बनाई, वो कैसे वो भाग रही है, कैसे पेट्रोल उसमें वो जा रहा है आ रहा है, उसको आपने क्या करना है। तो अब आप इसको चाहिए कि ये टोटल करना है, ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। टोटल करने के लिए वी लुकअप इज नॉट ए राइट फॉर्मूला। उसके लिए एक फॉर्मूला है सम इफ या सम इफ्स, दोनों में से कोई भी लगा दीजिए। कि सम इफ्स का मतलब सम करना है लेकिन कंडीशन के बेस पे, इफ कंडीशन के बेस पे। किसको सम करना है? हमने इस रेंज को सम करना है जी। ये रेंज दी आपने पहले, ये आपको अगर इसके थ्रू जाओगे तो गलती नहीं होगी। मैंने बताया ना, सम रेंज आपने दे दी, तो आपने बोला कि मेरी जो सम रेंज है वो है D6 से लेके D12 तक। फिर आपने बोला क्राइटेरिया, जैसे फिल्टर में बोलते हैं, तो ये मेरा क्राइटेरिया की रेंज है B6 से लेके B12। और क्राइटेरिया क्या है? ये मेरा दीपक है जी क्राइटेरिया। अब की बार मैंने इसको ओके बोल दिया। जैसे मैंने इसको ओके बोला, ये देखिए फॉर्मूला आप देख लीजिए। तो ये टोटल किसको सम करना है, किस कॉलम के बेस पे सम करना है, उसकी जो कंडीशन, और क्या मेरा दीपक है। इसने बोल दिया कि ये 600 आ गया। अब दीपक की जगह यहाँ पे सपोज करो मैंने राजीव कर दिया, तो ये 100 आ गया, क्योंकि राजीव एक है। लेकिन राजीव मैं सपोज 3 जगह पे डाल दूं, ये तीनों राजीव डाल दूं यहाँ पे, तो ये देखिए वैल्यू जो है, इसको अगर मैं 200 300 आपको समझ में आ जाए, मैं इसलिए ये देखिए 100 200 300 या 600 कर दी।
और इसी को अगर मैंने दीपक एक जगह और डाल दिया और इसी फॉर्मूले को आगे मैंने ड्रैग कर दिया, ये देखिए मैंने आगे इसको ड्रैग कर दिया, यहाँ पे देखिए दीपक, ये फिर से अच्छा, ये बाई चांस की बात है 600, इसके अंदर अगर मैं 5 रुपए डाल दूं, इसमें मैं 2 रुपए डाल दूं, ये देखिए 7 हो गया ऑटोमेटिक। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा, जो मैच करेगा वो मल्टीपल होंगे तो उसका सम करके मेरे को दे देगा। और बताइए सर कोई क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। इनको आप ऐसे जो क्वेश्चन करते हैं उनको चॉकलेट वॉकलेट बांटा करो यार, इतना बिल्कुल वेबनेस सर, इतना बढ़िया बिल्कुल। काम कर रही है, एक दो बिल्कुल अगर सर। चॉकलेट बांट दोगे तो यार भाई अच्छा ही लगेगा सबको। बिल्कुल सर, मैंने नाम नोट कर लिया है। अभी तो सर चॉकलेट कोरियर नहीं करवा सकता, बट फॉर अरे श्योर सर, सर। अरे सर आप जो है ना, यही तो बात है ना, देखो अपना को दिखाई दिया, राजीव ने ऐसा सिखा रखा है कि चॉकलेट, अरे भाई हम अपने जो कोर्स होते हैं हम तो उसको पेटीएम कर राइट। देते हैं, चॉकलेट के नाम के 50 रुपए उसको भेज देते हैं। आप बताओ जी बिल्कुल सर, कितनी देर लगेगी? बिल्कुल सर, अभी अभी बिल्कुल सर। आप जो जो ऐसे मत अच्छे बोलो ना क्वेश्चन कि है आजकल सबको। कोरियर नहीं हो सकता, ऐसे मत बोलो यार, सारे तरीके हैं। चॉकलेट की बात कर रहा था सर, ऑल्टरनेटिव आपने बहुत बढ़िया दिया सर। तो बस तो करो, आप उसको भेजो, उसको 50 रुपए है। 100% सर, जो ये क्वेश्चन ने अच्छा पुट करा है, विल सेंड अ गिफ्ट अमाउंट टू हिम। सर, एक रमेश बंसल जी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। रमेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर दिया सर, आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, थैंक यू राजीव जी। विजय जी, एक क्वेश्चन था मेरा कि ये कई बार क्या होता है, हमको कॉलम में हेडिंग देने होते हैं जनवरी टू दिसंबर, और कई बार रोज में देना होता है, तो एक बार देखिए उसको ड्रैग करके कैसे करें, वो मैं कई बार कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा वो, जनवरी फरवरी मार्च। सर ड्रैग करके बस कुछ नहीं करना, आपने जनवरी लिखना है और जनवरी को पकड़ करके नीचे खींच देना, हो गया। अगर इधर पकड़ के खींचोगे तो इधर हो जाएगा। देखो विजय जी, तो आई ये थिंक इनका ना डिसेबल हो रखा होगा, आप वो बता दीजिए। आई थिंक नहीं, मेरा मतलब जनवरी 20, अगर ईयर भी साथ में लिखना हो, जनवरी 20 या जनवरी 19 करके, तो हाँ, तो वो भी अगर आपका होगा, जैसे सपोज करो आपने जनवरी 20 डाल दिया, अब जी। आपने इसको पकड़ करके नीचे खींचा, तो देखिए जनवरी 20, फरवरी 20 ये हो गया, और जून 20 को अगर इधर पकड़ के इधर खींचा तो ये आपका ये हो गया जून 20, जुलाई 20, अगस्त 20, सितंबर 20, ये हो जाएगा। ओके, अब मतलब उसमें आपकी जो टेक्स्ट के प्रॉब्लम होगी वो जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होगी आपकी। डेट का जो फॉर्मूला है ना, कल मेरी एक डेट के फॉर्मूले पे काफी बढ़िया मैंने बताया ना मास्टर क्लास होनी है। अगर जो आदमी एक्सेल में चाहते हैं कि और मास्टरी करनी, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डीप डाइव करना है, ये जी उनके जी, लिए जिनको एक्सेल अच्छा आता है, एवरेज है। कोई ऐसा नहीं कि ओके हम सोचे एक्सेल कम आता है और वो मास्टर क्लास में ज्वाइन कर लिया तो उसके ऊपर से जाएगी चीजें। तो ओके कल ओके डेट के ऊपर एक फॉर्मूला होना है। उसका क्या है जी, आपका अगर आप देखोगे ना कंप्यूटर का सिस्टम, यहाँ हाँ पे जी, देखिए विंडोज की जो डेट की सेटिंग होती है ना जी, हाँ वो जी, डेट की सेटिंग आपकी मंथ पहले होगा, डेट बाद में होगी। ओके, लेकिन अपना इंडियन जो टाइम है, डेट है, वो आप करिए डेट पहले कीजिए, मंथ हाँ, बाद में कीजिए और ईयर बाद में कीजिए। तो ये सेटिंग आप डेट पहले करोगे तो आपकी ये सेटिंग सही से हो जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, वो मंथ पहले करने से आपका जो ये टाइप करते हो, आपने इसमें टाइप किया जुलाई 20, जून 20, तो ये जून 20 नहीं मानता इसको। मेरे में तो इसने मान लिया 1 जून 20, आपके में ये क्या मान लेता है, 6 जनवरी 20 मान लेता है। और जब 6 जनवरी 20 मानता है और इसको जब खींचते हो तो ये क्या करता है, 7 जनवरी कर देता है, 8 जनवरी कर देता है, ये मंथ नहीं करता। लेकिन अगर आपने वो सेटिंग, तो 1 मिनट का काम है, अगर चेंज कर दिया आपने तो ये आपका आराम से ड्रैग होगा, बिल्कुल स्मूथली ड्रैग होगा। ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है ड्रैग, देखिए, और लेफ्ट साइड में भी ड्रैग हो सकता है। ये पकड़ के देखिए, अप्रैल 20 को इधर किया, मार्च 20, फेब 20, जैन 20। ओके, अच्छा, बैकवर्ड्स, ओके, वेरी वंडरफुल वंडरफुल। पता ही नहीं होता सर, हमको तो इतने साल हो गए। सर चॉकलेट ले लेना, आप राजीव जी से चॉकलेट ले लेना। ये राजीव जी जो है ना, बहुत देखिए इतनी बढ़िया बढ़िया वेब ये करवाते हैं, लेकिन अपने जो है पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछवा लेते हैं और उनको कुछ भी नहीं देते। मैंने आज नहीं सबके सर, सामने बोल दिया। 100%। बिल्कुल सर। राजीव जी के तो हम बहुत पुराने कस्टमर हैं, वो जानते नहीं है नाम से, फर्म के नाम से जरूर जानते हैं, नाम से नहीं जानते हो, और मैं तो उनके करीब करीब सारे सेशन अटेंड करता हूँ। चलिए, तो थैंक ठीक है यू जी, वेरी मच राजीव जी, वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी का डाउट हो, इन द चैट दे कैन रेज देयर हैंड्स। एक I ही will unmute डबल them. वी लुकअप का कोई पूछ रहे हैं, हाउ टू यूज डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप तो वो तो सिनेरियो पे डिपेंड करेगा ना जी। जैसे अब एक डबल वी लुकअप का, भाई क्या मैं तो 10 वी लुकअप भी लग सकते हैं जैसे, लेकिन चीज पता लगे ना हमारे को। कई बार क्या होता है, हमने वी लुकअप लगाया और मैंने एक उसको दिया कि जनवरी में से वो चीजें ढूंढ करके लेके आए, और अगर जनवरी में उसको चीज ना मिले, मतलब हमने बोला कि यार पहले तुम जो है ना भाई जाना वहां पे और हल्दीराम की तूने मिठाई लेके आनी है। अब वो हल्दीराम पे गया और वहां पे जो है ना कोविड 19 के चक्कर में वो दुकान बंद है।
लेकिन उसको फिर आपने दूसरी ऑप्शन दे रखी है कि भाई अगर हल्दीराम की दुकान बंद हो तो एक काम करना, तू यार वहां पे जा करके और इस पे चले जाना, ये मोहन स्वीट्स वाले पे या बीकानेर वाले पे चले जाना, तो वो शायद खुली होगी तो उससे लेके आना। तो वो पहले बीकानेर पे नहीं जाएगा ना, पहले तो हल्दीराम पे जाएगा, और वो हल्दीराम पे अगर उसने देखा कि वहां पे बंद है, वहां पे दिक्कत है, तब उसके बाद वो उस पे जाएगा। तो इसको करते हैं डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप का मतलब ये हुआ, सपोज करो मैं आपको, जैसे ये वाली जो टेबल थी, जैसे इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, कि मैंने इसमें ये बोला कि यहाँ पे वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट सीट से मेरे को ढूंढनी है, कि पहले वो जनवरी में ढूंढे जी, अगर जनवरी में उसको वैल्यू मिल जाए तब तो जनवरी के लेके आए, अदरवाइज वो फरवरी में जाए और फरवरी की वैल्यू ढूंढ करके लेके आए। तो मैंने इसको बोला A1002 है, इसका लास्ट नेम ढूंढना है तुमने। अब ये देखिए A1002 वो जनवरी में तो है, अब उसके बाद वो फैब के अंदर, फैब में भी, अब सपोज मैं इसका चलो दूसरा नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया नाम 100 200, ऐसे मैंने आईडी डाल दी एक बार, और इसके बाद मैंने ये यहाँ पे डाल दी। अब इसके अंदर से 400 500 700 ये मैंने कुछ मिसिंग कर दिए, और फिर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मेरा कोई पड़ा हुआ है, 100 भी पड़ा हुआ है, 200 भी पड़ा हुआ है, 400 भी पड़ा हुआ है, और ऐसे करके मेरे पास कुछ वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये जो 400 की वैल्यू है वो इधर नहीं है, लेकिन 100 की वैल्यू इधर भी है और 100 की वैल्यू इधर भी है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मेरे जो है ये 100 भी ढूंढना है, उसको 400 भी ढूंढना है, 600 भी ढूंढना है, मतलब जो भी नाम है मेरे को ये ऐसे ढूंढ करके लेके आना है। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि वी लुकअप लगा, मतलब पहले जो है तुम हल्दीराम की दुकान पे जाना जी, वी लुकअप लगाएंगे, ये A4 पे हमने किया, और यहाँ पे जाकर के टेबल एरे में आपने बोला जी जनवरी, और जनवरी में आपने पूरी रेंज दे दी जी। पूरी रेंज देने का फायदा क्या है, डॉलर का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। और आपने बोला जी लास्ट नेम ढूंढना है आपने, तो आपने इसको तीसरा कॉलम दे दिया और यहाँ पे 0 दे दी। तो यहाँ पे इसने 100 की वैल्यू इसने ढूंढ दी और ये गोयल लेके आ गया। जब इसने इसको नीचे खींचा तो यहाँ पे एरर आ गई, जब इसको नीचे खींचा तो यहाँ पे भी एरर आ गई। क्यों एरर आ गई? जनवरी के अंदर ना तो 400 है ना 600 है, लेकिन 100 था। अब वो जनवरी की वैल्यू है फैब में, मतलब ये बीकानेर की दुकान है। आपने उसको बोला था कि अगर तेरे को वहां पे रसमलाई हल्दीराम में ना मिले तो मे बी तुम जो है ना बीकानेर से लेके आना, क्योंकि हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं, उनको रसमलाई तो जरूर खिलानी है। तो अब उसने यहाँ पे नहीं मिला तो यहाँ पे आप लगा सकते हो डबल वी लुकअप। जैसे एरर आ गई तो यहाँ पे क्या करो, इसी वी लुकअप को, कि ये जो एरर आई इसमें हमने बोल दिया इफ एरर, राइट, कि अगर एरर आए जहां पे तो इसी वी लुकअप को कॉपी करो, कंट्रोल C करो और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दिया। मतलब पहले तो वो देखे जनवरी में, और जनवरी में वैल्यू ना मिले तो यहाँ पे मैंने लगा दिया फैब, कि वो फैब में ढूंढ ले जी, और इसके बाद मैंने एंटर मार दिया जी। तो जैसे मैंने इसको एंटर मारा तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसने गोयल ढूंढा और इसको मैंने वैल्यू खींच दी थी। तो यहाँ पे देखिए 400 की वो वैल्यू उधर ढूंढ लेगा, राइट। लेकिन 100 जो है वो फैब में भी है, लेकिन यहाँ का जो 100 है, यहाँ पे सपोज करो मेरा नाम ये विजय या XYZ मैंने नाम दे रखा है जी। तो यहाँ पे जब 100 की वैल्यू ढूंढेगा तो 100 की वैल्यू में तो गोयल लेके आ रहा है, वहां पे वो 100 की वैल्यू में नहीं लेके आया। लेकिन सपोज करो मेरी अब अगर जनवरी के अंदर 100 की वैल्यू गायब हो जाए, यहाँ पे 100 की जगह मैंने कुछ और वैल्यू डाल दी, तो मैंने उसको बोल रखा है कि अगर 100 भी जनवरी में ना मिले तो फैब में ढूंढना। तो यहाँ पे क्या लेके आ गया, वो फैब से वैल्यू लेके आ गया। तो मतलब ये हुआ कि वो डबल वी लुकअप हो गया। अब ये क्या है, पहली प्रायोरिटी उसकी जनवरी वाले उसमें जाएगा, उस दुकान पे जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी वो दुकान बंद होगी तो इस पे जाएगा। तो ऐसे सर ये सिनेरियो बनाने, ये सब मैथमेटिक्स है। ऐसी कोई कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो 2 पे भी लगा लोगे, 200 पे भी लगा लोगे, और भी उसके कुछ ना कुछ निकाल लोगे। और अगर रटने की कोशिश करोगे तो मैं कह रहा हूँ जी, जिंदगी में कभी एक्सेल तो सीख नहीं पाओगे, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बस वो एक मक्खी पे मक्खी मार पाओगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट अगर सीखना है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मेरी अगर चाहे वो वीडियो 1 देखो चाहे 2 देखो, मैं हमेशा कंसेप्ट की बात करता हूँ। विजय कालरा जी हैं सर हमारे साथ, तो अनम्यूटेड हैं सर, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क। हाँ जी विजय सर जी। हाँ सर, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप कौन सी एक्सेल वर्जन से हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये जो वर्जन कौन सा है सर? सर मेरे पास जो एक्सेल है ये ऑफिस 365 बोलते हैं या 2016 कह लो। ये जो है ना एक्सेल का लेटेस्ट जो वर्जन कह सकते हो, जो कि सबको लेना चाहिए। बाकी मैंने जो भी आज चीज आपको बताई है, ये सारी की सारी चीजें
2007 में भी चलेंगी, 2010 में भी चलेंगी, 2013 में भी चलेंगी। आज मैंने आपको किसी को भी ऐसी कोई भी चीज नहीं बताई है जो आपके किसी भी वर्जन में ना चले। हाँ, 2003 में हो सकता है वो जो शॉर्टकट कमांड वाली जो थी मेरी कमांड वो नहीं चले, लेकिन वीलुकअप तो उसमें भी चलेगा। सर अभी हम जैसे 2007 यूज कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा अपग्रेड हम कौन से हमारे लिए अभी कन्वीनियंट रहेगा, जो मतलब एकदम मैंने ज्यादा इतना हाई जंप भी ना करें? नहीं, हाँ मैंने हाँ। इतना एग्जाम्पल दे दिया। मतलब बीवी ने बोल दिया 80,000 का फोन 1 मिनट नहीं लगाओगे, और अगर आपने जो है ना उसमें भी बोल रहे हो कि थोड़ा सा अपग्रेड कर ले, अरे भाई 2007 से कितना फर्क पड़ेगा। आप जो है ना जो 6,000 रुपए के अंदर ऑफिस 365 5 यूजर उसको यूज कर सकते हैं, 5 कंप्यूटर पे आप डाल सकते हो, 6,000 ओके रुपए फाइन एक सर। साल के। तो बताओ राइट सर। यार, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे अच्छा तो अगर काम ही नहीं चल रहा तो फिर तो भाई जो भी कर लो फिर तो कंपनी दे ही देगी आपको। अगर इतना भी अगर हमारा काम नहीं है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी शुभम जी, और भाई किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई और हमारे लायक कोई सेवा हो तो सर बताइए। सर एक लास्ट क्वेश्चन अजय व्यास जी है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हाँ जी, आई थिंक सर हो नहीं रहे सर। और सर एक दो हेलो। क्वेश्चंस थे सर। हाँ जी हाँ अजय आगे जी। जी, हाँ आगे अजय राजीव व्यास सर। जी आगे। हाँ थैंक यू सर। विजय जी एक क्वेश्चन था मुझे वी लुकअप के बारे में। सर फोटो तो दिखा दो अपनी यार, कोई एक आध तो क्वेश्चन ये पूछते हैं और आप अपनी शकल भी तो दिखा दीजिए यार लोगों को। आई थिंक वीडियो का कुछ इशू है सर। मैं जस्ट क्वेरी छोटी थी, मैं पूछ सकता हूँ क्या अभी? हाँ 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 जी प्लीज हाँ जी। प्लीज। हाँ सर, एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था कि वी लुकअप में सोर्स टेबल में अगर सपोज कोई नाम है उसमें दो रिजल्ट आ रहे हों, अलग अलग नाम, जैसे अभी आपने ये वैल्यू ली 100 और 400, अगर हाँ एक हाँ ही नाम के अगर दो आंसर आ रहे हों और मुझे रिजल्ट में भी उसका सेकेंड लुकअप का आंसर चाहिए, सो उसका हाँ कोई हाँ वे आउट है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल वे आउट है। उसके लिए बस आप जो है ना मेरी वेबसाइट पे चले जाओ, और वो ओके। 500 रुपए का मेरा कोर्स है, उसको आप परचेज कर लो। उसके अंदर वो उसका सिनेरियो समझा रखा है बस। अच्छा अच्छा। इससे बढ़िया इससे सिंपल क्या हो सकता है बताओ। और फिर भी श्योर अगर सर। आप वो भी नहीं करना चाहो तो आप ये खत्म होने के बाद आप हाँ मेरे को अपनी फाइल भेज देना, मैं उसमें हाँ। आपको फ्री में जो है ना उसका लगा करके फॉर्मूला भेज दूंगा। या 100% प्रोमिस कर रहा हूँ, कोई उसका अलग से कोई ये नहीं कि वो करूंगा। आपकी मेल आएगी मेरे पास, मैं हाँ। आपको वैसे करके दे दूंगा, अगर आपको वो भी अगर चीज नहीं करनी हो तो कोई श्योर इशू नहीं सर। है सर। या थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। शुभम भाई आपका ये म्यूट म्यूट हो रखा है। हाँ हाँ जी बोलिए। सर। सर मैं कह रहा हूँ आई थिंक वी हैव टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट आई कैन सी सर। तो आई थिंक वी शुड क्लोज द सेशन नाउ। आज का सेशन सर काफी लंबा खिंच गया और बहुत अच्छा सेशन था, जस्ट लाइक द लास्ट टू सेशन सर। राजीव सर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं ठीक है, आई थिंक काफी इंटरेक्टिव रहा है, और विजय जी ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर भी किए हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें बताई हैं। तो आई थिंक विद दैट वी शुड थैंक हिम एंड एंड द सेशन। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच विजय जी फॉर और आने टुडे वाले टाइम सेशन। में भी आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, तो कोशिश ये रहेगी जी। और कुछ आप हमारे लायक कोई सेवा बोलेंगे? ये मैंने आपको अपना फोन नंबर वगैरह बता ही दिया है। वहाँ का भी आप एक बार शेयर कर देना लास्ट में शुभम। हाँ जी हाँ जी सर। शुड आई प्ले द वीडियो वंस? आकाश कैन यू प्ले द वीडियो? स्कैन करके कैसे इसको आपको व्हाट्सएप पे ऐड होगा बता दीजिए। हाँ जी। आकाश आई थिंक सो फिर से वॉइस नहीं है। हम बस आप वो स्कैन करने का वो बता दो, लीव द वीडियो। या so if anyone has any sort of doubts or want to know more about our new software Vectel Va, which is a complete solution for work from home. So this is work at home solution. इस सॉल्यूशन को यूज करने से आप लोग अपने सारे सॉफ्टवेयर, टैली हो, बिजी हो, वेक्टर सॉफ्टवेयर हो और किसी
कंपनी का सॉफ्टवेयर हो विच इज डेस्कटॉप बेस्ड, आपका सर्वर का डेटा हो सारा का सारा, that all those things you can access by sitting at your home. Your staff can use that data, that software, by sitting at their home. They don't need to install all those softwares or transfer all those data to their systems. So it's a very good exe that Webtel utility that Webtel is providing. In case you want to know, you can just scan this QR code. नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ लोग पूछ रहे हैं, सो ऑल द रजिस्टर्ड यूजर्स विल लेट देम नो, राइट? Yes sir. एक हम स्टैट्यूटरी ड्यू डेट्स, अब जून में काफी सारी ड्यू डेट्स हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीक में प्लान कर रहे हैं, उसके लिए बता देंगे, एंड एक्सेल का जो नेक्स्ट सेशन करेंगे उसका ही बता देंगे. सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. शुभम, यू कैन क्लोज देन. Yeah. Thank you so much, Vijayji, once again. Thank you, bhai, Again, the Shubhamji. session Thank was. you. Thank you for Again, the giving me session was opportunity. best, sir. Yes, sir. Hanji, sir. Sir, again, the session was best, sir. I think बहुत सारे कमेंट्स मैं अभी देख रहा हूँ सर, सिर्फ मेरे को ही मिल रहे हैं. तो सर सारे लोग पूछ रहे हैं आपके सर चैनल का नाम. सर मैं यूट्यूब चैनल का नाम रिपीट करना चाहूंगा सर के, चैम्प एक्सेल, CHAMP, Yes. चैम्प एक्सेल. वो चैनल पे जाके आप भी शायद एक्सेल के चैंपियन बन जाए. और अगर कोई भी क्लाइंट इन केस दे वांट टू नो मोर अबाउट द अपकमिंग वेबिनार्स, वो आप हम लोगों की वेबसाइट भी विजिट कर सकता है, which is webtel.in. तो वहां पर आप लोगों को सारे वेबिनार्स के अपडेट्स मिल जाएंगे. So until next time, thank you so much Vijay ji, thank you so much Rajiv sir, thank you so much all the participants. Thank you, ji. Thank you. Thanks a lot. Good day sir. Good day, ji.